بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ہیومن رائٹس فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آج جو ناول شروع کرنا ہے وہ ہے مکمل ناول آتش عشق بائی افشاں علی۔ رات بے حد حسین تھی۔ فضا میں رات کی رانی کے پھولوں، ساون کی پھوار کی مہک اور گیلی مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ کھڑکیوں سے جب ہلکی ہلکی بھیگی سی ہوائیں اندر آتی تو اس کے تن من میں پرلطیف سا احساس سرایت کر جاتا۔ بلا شبہ موسم نے بہت خوشگوار انگڑائی لی تھی۔ یہ بھیگی بھیگی ٹھنڈی سی شوق نرم ہوائیں اور اس کی سرسراہٹ ساون رتوں کا سنگھار تھیں۔ ایسے موسم میں اس کے اندر بے بسی سی چھا جاتی۔ ساون کی مہک، بارش کی پھوار، پھولوں، چاندنی راتوں، ان سب میں مگن اور اپنی دنیا میں رہنے والی لڑکی آج کتنی بے بس تھی۔ اندر کی گھبراہٹ بڑھنے لگی تو وہ کھڑکی کے باہر آ کھڑی ہوئی اور اس کے دونوں پٹ پوری طرح وا کر کے اس نے باہر کی جانب اپنی ہتھیلیاں پھیلا دیں۔ بارش موتیوں کی صورت ہتھیلیوں پر برس کر پانی بننے لگی۔ باہر اب بارش تیز ہونے لگی تھی۔ چھم چھم بارش کی بوندیں ماحول پر زبردست تاثر چھوڑ رہی تھیں۔ ان کو ہوائیں ادھر سے ادھر لیے آنکھ مچولی کھیل رہی تھیں۔ بارش کے قطروں کا ریلا چاندنی کے بلبلوں کی طرح رقصا تھا۔ تیز ہوا کا جھونکا اپنے ساتھ بچھاڑ لے کے اس کے چہرے، گردن اور سینے پر حملہ آور ہوا تو اس نے بند آنکھوں کو کھول لیا۔ جسے بند کیے وہ اس بارش اور اس کی رمجم بوندوں کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کا دل بارش میں بھیگنے کے لیے مچلنے لگا۔ تبھی وہ بے خود سی ہوتی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی گیلری میں چلی آئی۔ اس کا روم اوپر کی منزل پہ تھا، اسی لیے اس کی گیلری کافی کھلی تھی، بالکل ٹیرس کی طرح۔ وہ ارد گرد سے بے پرواہ اور بے خبر اس بارش میں اپنے تن من دونوں کو ہی بھگونے لگی۔ وہ جو ابھی روم میں داخل ہوا تھا، گیلری میں اسے یوں بھیگتے دیکھ کر اس کے قدم گیلری کے گلاس ڈور کے پاس تھم سے گئے۔ وہ یک ٹک اسے دیکھنے لگا۔ بلیک اینڈ وائٹ لون کے پرنٹڈ سوٹ پر دوپٹہ کاندھوں پر پھیلائے، آنکھیں بند کیے، وہ دونوں ہاتھ وا کیے گیلری کے بیچوں بیچ کھڑی بارش کو انجوائے کر رہی تھی۔ ٹھنڈی تیز ہوا اس کے لمبے سیاہ بالوں کی زلفوں سے چھیڑ خانی میں مصروف تھی۔ اس کا نکھرا نکھرا سا چہرہ، جس پر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے معصوم سے چہرے پر چار چاند لگا رہی تھی۔ کتنے ہی پل وہ یوں ہی سینے پہ دونوں ہاتھ باندھے گلاس ڈور سے ٹیک لگائے اسے دیکھتا رہا۔ کافی دیر بھیگتے رہنے کے بعد اس نے واپسی کا ارادہ کیا اور جب وہ اپنے بھیگے وجود کے ساتھ پلٹی تو اسے گیلری کے ڈور پر استادہ دیکھ کر چونک گئی۔ لگتا ہے آپ کو بارش بہت پسند ہے، وہ اس سے مخاطب تھا، مگر وہ بنا کوئی جواب دیے اس کے پاس سے گزر کر کمرے میں داخل ہونے لگی۔ کیا ہوا؟ یہ میرے ہی سامنے کیوں تمہاری بولتی بند ہو جاتی ہے؟ اس نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پلیز چھوڑے میرا ہاتھ۔ رخ موڑے بغیر ہی اس نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا۔ اف، اتنا غصہ، اتنا نخرا۔ ویسے مجھے یوں نخرے نہیں پسند۔ اس کا ہاتھ اور مضبوطی سے پکڑ کر مڑوڑا، اس کے منہ سے سسکی نکل گئی۔ اور مجھے آپ نہیں پسند۔ کھٹ سے جواب دیکھ کر اس نے مخاطب کے غصے کو ہوا دی۔ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ اپنے آپ کو تو میں انسان سمجھتی ہوں، مگر آپ کا پتہ نہیں، وہ بھی روبرو ہو کر بولی۔ چلو تمہیں بتاتا ہوں، میرا پتہ نہیں نہ تمہیں۔ اس کے دونوں بازوؤں کو سختی سے جکڑے اسے کھینچ کر ایک طرف لا کر پٹکا۔ اگلے ہی پل اس کے بھیگے کپڑے اس کے سوکھے جسم کو راحت اور تسکین دے رہے تھے۔ صفا کی انتہا پر پہنچ کر وہ طنز کرنا نہ بھولا تھا۔ بھیگے موسم میں اس کے الفاظ نے آگ لگا دی تھی۔ اس کا دل اس کے جسم کی طرح جلنے لگا تھا اور آنکھوں میں جیسے مرچیں سی بھرنے لگی تھیں۔ بند پلکوں کی چلمنوں سے آنسو بہہ بہہ کر اس کے گال کو بھگونے لگے تھے۔ باہر بارش جاری تھی اور یہاں اس کے اندر طوفان برپا تھا۔ رات جو کچھ دیر پہلے بہت حسین رہی تھی، مگر اب یہی حسین رات اس کو خون کے آنسو رلا رہی تھی۔ وڈیرا حویلی رانی پور کے نواحی قصبے کے وسط میں وڈیرے علی بخش نے تعمیر کروائی تھی۔ لال اینٹوں سے بنی یہ پختہ بڑے بڑے ستونوں پر مبنی حویلی دیکھنے والے کو مبہوت کر دیتی۔ لال اینٹوں سے مزین روش پر دونوں اطراف کھجوروں، برگد اور نیم کے درخت پھیلے ہوئے تھے۔ آگے جا کر جہاں یہ قطار ختم ہوتی اور مرکزی گیٹ شروع ہوتا، وہیں دائیں جانب ہری ہری گھاس کا لبادہ اوڑے لان موجود تھا، جس میں لکڑی کا ایک خوبصورت جھولا اور ساتھ ہی کرسی ٹیبل رکھا ہوا تھا، جبکہ بائیں جانب باغ تھا، جس میں گلاب، گل ہزارہ، گل داؤدی، مونگرے اور بھی بہت سارے پھولوں کی قطاریں ترتیب سے موجود تھیں۔ سارے فاصلے پر ایک تالاب بھی تھا، جس کے وسط میں ایک فوارہ آویزاں تھا۔ تالاب میں بھی گل نیلوفر اپنی بہار دکھاتا، دیکھنے والا ان نظاروں میں کھو سا جاتا۔ علی بخش کے دو بیٹے تھے، بڑے خادم علی بخش اور چھوٹے حسین علی بخش۔ باپ کی وفات کے بعد خادم علی وڈیرے نامزد ہوئے۔ حسین علی اپنے باپ اور بھائی سے مختلف طبیعت کے تھے۔
انکساری، خدمت خلق، ہمدردی ان میں کوٹ کوٹ کر خدا نے عطا کی تھی، جبکہ خادم علی اگرچہ نیک دل تھے مگر وڈیروں والی صفات ان میں کثرت سے موجود تھیں۔ خادم علی کا ایک بیٹا نیاز حسین شاہ تھا جسے پڑھائی میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، تبھی وہ اپنی بنی زمین کا کام سنبھالتا۔ حسین علی کا ایک بیٹا اعظام اور بیٹی دانیہ تھی۔ ان کی بیوی انہیں چھوڑ کر جا چکی تھی اور یہ ذلت اور رسوائی وہ سہ نہیں پائے تھے کہ شادی کے 12 سال بعد ان کی بیوی کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی، تبھی وہ دنیا سے منہ موڑ گئے۔ حویلی کے مکینوں میں بارش اور بزرگ اماں جیجل بھی رہتی تھیں جو کہ خادم اور حسین کی والدہ تھیں۔ ایک حادثے میں نیاز حسین شاہ کی موت نے اس حویلی کے مکینوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور پھر کچھ فیصلے اتنی اچانک ہوئے کہ کسی کو سنبھلنے کا وقت ہی نہیں مل پایا۔ اعظام کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے اس کے تایا نے اسے جامشورو یونیورسٹی پڑھنے بھیجا تھا، مگر اپنے بھائی کی حادثاتی موت پر وہ پھر سے حویلی آ گیا کیونکہ اب یہاں کے مکینوں کو اس کی ضرورت تھی۔ اس کے تایا جوان اور اکلوتے بیٹے کی موت پر ڈھہ سے گئے اور آج کل بیمار تھے۔ یاسر شیخ کا تعلق بظاہر تو گھمبٹ کے قریبی گاؤں سے تھا، لیکن اپنے والدین کی وفات کے بعد وہ اپنا دیہی گاؤں چھوڑ کر کراچی شفٹ ہو گئے تھے۔ ان کے کزن، رشتہ دار سب ہی اسی گاؤں میں مقیم تھے۔ نواب شاہ سے گریجویشن کر کے جب وہ کراچی شفٹ ہوئے تب یہیں کی رہنے والی سائرہ کو اپنا شریک سفر بنایا۔ سائرہ ایک سوشل ورکر وومن تھی۔ شادی کے بعد بھی ان کا سوشل سرکل یوں ہی جاری رہا۔ یاسر شیخ بھی ایک آفس میں مینجمنٹ کے عہدے پر فائز تھے۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ ان کے آنگن میں یکے بعد دیگرے دو تتلیوں نے اپنی چہچہاہٹ، رنگوں اور خوشبوؤں سے رونق بخشی تھی۔ بڑی بیٹی گلفشاں تھی اور پھر چھوٹی زوفشاں۔ دونوں کو اپنے ماں باپ کا یکساں پیار ملا تھا، تبھی ان میں دونوں کے گن شامل تھے۔ گلفشاں نے گریجویشن مکمل کیا ہی تھا کہ اس کے رشتے آنا شروع ہو گئے، جن میں سے جنید انہیں موزوں لگا اور یوں گلفشاں یاسر، گلفشاں جنید بن کر پیا دیس سدھاری۔ آج کل وہ کینیڈا میں مقیم تھی اور اس کا 6 ماہ کا پیارا سا بیٹا رمیسل تھا جو کہ باتونی، شرارتی، ہنس مکسی زوفشاں آج کل B.Com کر کے فارغ تھی۔ اسے گھومنے پھرنے کا بہت شوق تھا، مگر پاپا کی اپنی مصروفیات تھیں، جبکہ ممی کا اپنا سوشل ورک کا دائرہ اتنا وسیع تھا، اور ویسے بھی ممی کو گاؤں اور گاؤں کا ماحول پسند نہیں تھا، تبھی اپنے پاپا کے آبائی گاؤں وہ چاہ کر بھی نہیں جا پائی تھی، مگر وہ انجان تھی کہ آنے والا وقت اس کو کس دوراہے پر لا کھڑا کر دے گا۔ زوفی، سائرہ، ارے بھائی کہاں ہو تم سب، نیچے تو آؤ۔ یاسر شیخ جو ابھی ابھی گھر میں داخل ہوئے تھے، لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اپنی بیٹی اور اپنی بیوی کو آواز دینے لگے۔ آئی پاپا، 1 منٹ۔ زوفی جلدی جلدی سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے لاؤنج میں آئی۔ پاپا، ارے آپ آج جلدی آ گئے، ماما تو باہر گئی ہوئی ہیں، کچھ کام تھا پاپا؟ ارے بھائی سانس تو لے لو نا، یاسر شیخ نے ہنستے ہوئے اپنی بیٹی کے سوالات کی توپ پر بریک لگاتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے پاپا، آج تو آپ کافی خوش نظر آ رہے ہیں۔ واہ، آپ نے تو فوراً گیس کر لیا۔ اچھا یہ دیکھو، یہ کیا ہے؟ یاسر شیخ نے جواب دیتے ہوئے اپنے بریف کیس میں سے ایک سادہ سا کارڈ نکال کر اس کے سامنے کیا۔ اوفو پاپا، آف کورس یہ کارڈ ہے، اور کیا؟ زوفی جو اپنے پاپا کی خوشی کی وجہ جاننا چاہتی تھی، یوں اچانک کارڈ دیکھ کر برا سا منہ بناتے ہوئے بولی۔ یہ تو ہمیں بھی پتا ہے یہ کارڈ ہے، پر گڑیا آپ کو پتا ہے یہ کس کا کارڈ ہے؟ یاسر شیخ نے کارڈ دیکھتے ہوئے کہا۔ پاپا، اول یہ کاغذ کا کارڈ ہے، اور دوئم یقیناً کسی نہ کسی کی شادی کا ہی کارڈ ہوگا۔ پاپا کے برابر رکھے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اس نے کہا۔ بالکل صحیح اندازہ لگایا ہے، یہ شادی کا ہی کارڈ ہے، اور وہ بھی میرے اکلوتے چچا زاد بھائی ازور بھائی کی بیٹی نیلوفر کی شادی کا۔ یاسر شیخ نے اپنی بیٹی کی بات پر مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے جواب دیا۔ اوہ نیلوفر باجی، وہی نا جو پچھلے سال سے بھی پچھلے سال گل آپی کی شادی میں آئی تھیں۔ زوفی نے وہ کارڈ پاپا کے ہاتھ سے لیتے ہوئے کہا۔ کندھے سے ذرا نیچے تک آتے مہندی سے رنگے بال، جس میں ستاروں اور موتیوں سے سجا پراندہ ڈلا ہوا، گھٹنوں تک آتی چست قمیض پر گھیردار شلوار اور بڑا سا دوپٹہ لپیٹے، چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں موٹا موٹا سا کاجل، چہرے پر پاؤڈر اور کریم کا بے دریغ استعمال، اور ہونٹوں پر تیز لال کلر کی لپسٹک، سونے پر سہاگا۔ یہ تھی نیلوفر عرف نیلو، جس کا نام سنتے ہی 2 سال پہلے والی ملاقات پر نیلوفر کا حلیہ چھم سے زوفی کے ذہن کے کونے میں کوندا تھا۔ جی بیٹا، وہی نیلو۔ کارڈ تو کسی اور کے ہاتھ بھیجا کیونکہ مصروفیت کی بنا پر وہ تو نہیں آ پائے، مگر فون کر کے اصرار کیا ہے، وہ بھی ہماری گل کی شادی پر آئے تھے، ہمارا جانا بھی بنتا ہے، سو بیٹا تیاری کر لو۔ یاسر شیخ نے پرجوش انداز میں کہا۔ کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ دونوں باپ بیٹی میں؟ اچھا ہوا بیگم آپ بھی جلدی لوٹ آئیں، یہ اپنی نیلو کی شادی کا کارڈ آیا ہے۔ زوفی کو یہی بتا رہا تھا کہ شادی میں جانا ہے ہم سب نے، سو تیاری شروع کر لے۔ یاسر شیخ نے اپنی بیگم کے جواب میں تفصیل سے آگاہ کیا، جو کہ ابھی ابھی آئی تھیں۔ یو مین ہمیں گاؤں جانا پڑے گا؟ لیکن میں ایسے کیسے شادی میں جا سکتی ہوں؟ میرا سوشل ورک کا کام
मेरा सोशल वर्क का काफ़ी काम है, फिर इसी हफ्ते सेमिनार भी है और अभी ज़ूफ़ी अपने पेपर से फारिग हुई है, थकन भी नहीं उतरी ठीक से। आप हैं कि चलने की तैयारी? हाल ये है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। सायरा वहीं उनके पास बैठते हुए माथे पर ढेरों ढेर शिकने लाए अजीब से लहजे में बोली। हद है बेगम, वो कोई बेगाने नहीं और ना पराए हैं, मेरे अपने ही तो हैं। ज़ूफ़ी बेटा, आप जरा 2 कप चाय बना लाओ। यासिर शेख ने अपनी बेगम को जवाब देने के साथ ही ज़ूफ़ी को चाय का कहा। जी पापा, अभी लाई। ये वो किचन की तरफ बढ़ गई, जबकि पीछे से आती मम्मा और पापा की बहस की आवाज़ें बखूबी उसके कानों तक पहुंच रही थीं। वो जानती थी कि हमेशा की तरह इस बहस का नतीजा लाहासिल ही होगा, शायद क्योंकि मामा को गाँव जाना कभी पसंद नहीं रहा था। बिल आखिर वही हुआ जिसका उसे डर था। पापा ने ही बिल आखिर हार मान ली थी। मामा ने तो जाने से इनकार कर दिया था, पर वो ज़ूफ़ी को अपने साथ ले जाने पर कायल कर चुके थे। ज़ूफ़ी ने इनकार इसलिए नहीं किया कि एक तो वो आजकल फारिग थी और बोर हो रही थी कि करने को कुछ था नहीं, सोचा थोड़ी आउटिंग हो जाएगी, और दूसरा ये कि वो अपने पापा की खुशी की खातिर शिरकत करना लाजमी समझ रही थी, क्योंकि मामा ने जो इनकार किया था पापा का जोश मानित पड़ गया था। पर अब उसके साथ जाने पर वो अपने पापा के चेहरे पर खुशी के ढेरों रंग देख चुकी थी। शादी में गो के अभी 2-3 दिन थे, पर यासिर शेख का कहना था कि यूं अच्छा नहीं लगता कि हम गैरों की तरह ऐन शादी के मौके पर जाएं, इसीलिए वो लोग शादी से 2 दिन पहले जा रहे थे। कराची से वो लोग बजरिया ट्रेन सक्खर के करीब वाक़िया खुम्बुट शहर के लिए रवाना हुए थे। हैदराबाद, नवाबशाह और दीगर छोटे बड़े शहरों से गुजरते हुए ट्रेन ने जब इन्हें खुम्बुट के स्टेशन पर उतारा तो अगले ही पल ज़ूफ़ी को आसपास वीरान खेतों खलियान और दूर इक्का दुक्का दुकानें और छोटे छोटे घर देखकर अपने यहाँ आने के फैसले पर अफसोस हुआ। स्टेशन पर इन्हें चचा जफर ही लेने आए थे। प्लेटफॉर्म क्रॉस करके जब वो लोग दूसरी तरफ पहुंचे तो कितार दर कितार यहाँ टांगे यूं खड़े हुए थे जैसे जिना टर्मिनल के बाहर टैक्सियां खड़ी होती हैं। खैर, वो सब एक टांगे पर सामान समेत सवार हुए और अपनी मंजिल की जानिब रवाना हुए। पापा तो चूंकि उन सब के आदी रह चुके थे, उनके लिए ये सब नया नहीं था, इसीलिए वो चचा अजफर से बातों में मसरूफ थे, जबकि ज़ूफ़ी के लिए ये सब बहुत नया और अनोखा था। कभी वो टांगे की हरकतों सकनात पर गौर करती तो कभी अपने दाएं बाएं गुजरते गन्ने के खेतों, खजूर के ऊंचे लंबे दरख्तों पर निगाह दौड़ाती, तो कभी कच्चे पक्के रास्ते पर टांगे से उठने वाली धूल मिट्टी को चेहरे पर आने से रोकती। गर्ज ये कि लामतनाही सोचों और अंदेशों में घिरकर बिल आखिर उनका सफर इख्तिताम पजीर हुआ, जिसे उसने दिल ही दिल में धूल मिट्टी की सवारी का नाम दिया। असफर चचा तो उनका सामान संभाले कच्ची पक्की पगडंडी पर चलने लगे, जबकि ऊंचे नीचे पत्थरों पर हील वाली सैंडल से चलना उसके लिए मुहाल था। करीब था कि पास पड़े किसी पत्थर पर बैठकर रोने लगती कि पापा ने उसका हाथ थाम लिया और यूं वो उनके हमरा गिरती पड़ती कच्चे पक्के कितार दर कितार बने मकानों के मोहल्ले में दाखिल हो गई। उसने अतराफ में हैरत और नागवारी से जायजा लिया। ईंटों और मिट्टी के गारे से बने हुए ये घर, जिनकी छतें खजूरों की शाखों और तने वगैरह से ढकी हुई थीं, और किसी इक्का दुक्का घर की छतें टीन की थीं। पास ही एक मस्जिद बनी हुई थी। थोड़ा सा आगे उसे कुछ दुकानें भी नजर आईं। अब वो लोग चचा अजफर के घर के सामने थे। गो के चचा अजफर के घर की बनावट और साख भी कुछ ऐसी ही थी जैसे कि आस पड़ोस के घरों की, पर फिर भी चचा अजफर का घर उनसे कुछ बेहतर हालत में था। वो सब आगे पीछे अंदर दाखिल हुए। अरे ये क्या, फिर चलना पड़ेगा। उसने बेसाख्ता इतने बड़े खुले वसीओ और इस सहन को देखा जिसके आखिरी सिरे पर कमरे, बरामदे वगैरह दिख रहे थे। गुड़िया, गांव के घर ऐसे ही होते हैं। आप पहली बार आई हो ना बेटा, इसीलिए सब कुछ अजीब लग रहा है। पापा ने उसकी हैरान शक्ल को देखते हुए कहा तो वो भी हैरत और सदमे से गंग आगे बढ़ी। चौड़ा सहन पार कर लेने के बाद ही बरामदे में अजफर चचा की बीवी नूरा, उनकी सास, पापा की फुफ्फो और भी काफ़ी खवातीन उनके इस्तकबाल के लिए खड़ी थीं, जिन्होंने बड़े पुरतपाक और गर्म जशी से इस्तकबाल किया। सिर्फ उसके पापा का ही नहीं बल्कि उसे भी गले लगाकर ढेरों प्यार से नवाजा, और वो इन सब की इतनी पुरखुलूस मोहब्बतें देखकर शर्मिंदा सी होने लगी। तभी चाची नूरा के हमरा वो कमरे में चली आई। पुत्र, हाथ मुंह धो, आराम कर। चाची नोरा की बात पर धूल मिट्टी की सवारी याद आई तो वो सामने लगे शीशे की तरफ बढ़ी। अपनी सूरत और हुलिया देखते ही चीख निकलने के करीब तर थी। धूल और मिट्टी से अटे बाल जो चिड़िया का घोंसला लगते थे, सफेद रंग धूप की तमाज़त से सुर्ख पड़ चुका था और होंठ खुश्क। वो चाची की हमराही में वॉशरूम की तरफ भागी। नहाने और अच्छी तरह फ्रेश होने के बाद और शरबत के 2 गिलास गटागट पीने के बाद वो कमरे में वापस आई तो वहां रखी चारपाई पर सोने की गर्ज से लेट गई। खाने का फिलहाल मूड नहीं था, इसीलिए वो इनकार कर चुकी थी। चारपाई पर सोना भी उसके लिए आसान ना था, पर करवट लेते भी आखिर वो नींद की वादी में उतर ही गई। वो नहीं जानती थी कि वो कितनी देर तक सोती रही है, क्योंकि वो लोग जब यहाँ पहुंचे तो दोपहर का वक्त हो रहा था। मगर अब वो जो उठकर कमरे से बाहर निकली तो बरामदे में पानी का छिड़काव करके
चारपाइयां रखी जा चुकी थीं। सब छोटे बड़े चारपाइयों पर विराजमान थे। मौसम थोड़ा हब्स-आलूद हो रहा था, जिसकी वजह से स्टैंड फैन लगाए गए थे। यूं मौसम की गर्मी और हब्स में खातिरख्वाह कमी हुई थी। उसके कदम वहीं कमरे की देवड़ी पर जम से गए। वो अजीब सी कश्मकश में घिर गई थी। अजनबी माहौल, अनदेखा गाँव। वो अजीब सी सोच में गुम थी। अरे धी रानी, इधर आ जाओ। नूरा चाची की नजर शायद उस पर पड़ी थी, तभी उन्होंने उसे पुकारा। नूरा चाची और आस पड़ोस की कुछ औरतें मेहंदी के थाल सजा रही थीं और आपस में सिंधी में बातें भी कर रही थीं। उसका बिल्कुल मूड नहीं था कि वो वहां उन सबके बीच जाकर बैठे, क्योंकि यहाँ गांव में सिर्फ इक्का दुक्का लोगों को ही थोड़ी बहुत उर्दू आती थी, वरना बाकी सब सिंधी में ही बातें करते। यकदम उसे नीलोफर याद आई। वो जब से आई थी नीलोफर से मिली नहीं थी। नीलोफर ने गाँव के ही सरकारी स्कूल से 8 जमातें पढ़ी थी, तभी उसकी उर्दू खालिस थी। चाची, नीलोफर कहाँ है? बेटा, वो पाड़ी में अपनी बुआ के यहाँ मायूं बैठी है। पाड़ी का मतलब यहाँ पर ब्रैकेट में पड़ोस लिखा हुआ है। आज मेहंदी रखी है, सब मर्द भी जमा होंगे, तभी वहां बिठाया है। जा ओए जुल्फी, धीनू नीलो के पास छोड़ आ। जुल्फी को जवाब देने के साथ साथ पास खड़े बच्चे से भी मुखातिब होते हुए कहा। तभी 8 साला बच्चा उसकी तरफ चला आया। वो भी अपना दुपट्टा ठीक से ओढ़ते हुए उसके हमराही में दरवाजे की जानिब बढ़ी, क्योंकि पापा ने उसे थोड़ा बहुत यहाँ के माहौल के बारे में बताया हुआ था कि यहाँ पर औरतें बड़ी सी चादर लिए बगैर घर से बाहर कदम नहीं रखती। वो बच्चा उसे नीलो के कमरे तक छोड़कर चला गया। वो अंदर दाखिल हुई तो हैरत का एक और झटका लगा। नीलोफर का पूरा चेहरा एक कपड़े से ढांपा हुआ था और उसकी सिर्फ 2 आंखें ही दिखाई दे रही थी। नीलोफर आगे बढ़कर उसके गले लगी तो उसे थोड़ा होश आया। यार, ये क्या है? मैं बना बैठी हूँ ना, तो ये हमारे में पहनते हैं कि किसी गैर मर्द को चेहरा ना दिखाए, क्योंकि यहाँ सबका मानना है कि फिर कुंवार पर रौनक नहीं आती। बना का मतलब यहाँ पर मायूं है और कुंवार का मतलब है दुल्हन। पीले मायूं के कपड़े में मलबूस नीलोफर ने गांव के इस रिवाज के बारे में बताया। तुम्हें घुटन नहीं होती इस तरह चेहरे को छुपाए रखने में? जूफी उसके हमरा चारपाई पर बैठते हुए बोली। यहाँ के बड़े बुजुर्गों का इस रस्म का बहुत मानना है। वैसे भी अगर कमरे में सिर्फ घर की खवातीन ही हों तो मैं ये कपड़ा चेहरे से हटा देती हूँ। नीलोफर ने अपने चेहरे पर से कपड़ा हटाते हुए कहा। उसने नीलोफर की सिमत देखा तो ये क्या, रोई रोई सी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। क्या बात है, अभी तो घर से दूर गई भी नहीं, अभी से आंखें जलतल हो गई हैं। उसने नीलोफर की उदासी कम करने के लिए शरारत से छेड़ा, मगर वो उसे सीने से आ लगी। अरे क्या हुआ यार? उसने परेशानी से उसकी तरफ देखा। पहले तुम वादा करो, ये बात किसी से शेयर नहीं करोगी। नीलोफर ने अपना हाथ उसके आगे किया। अच्छा यार, चलो मैं वादा करती हूँ, लेकिन ऐसी भी क्या बात है? उसने अपना हाथ उसकी हथेली पर रखते हुए पूछा। बात यह है कि मैं इस शादी से खुश नहीं और ना ही तैयार। नीलोफर की बात पर वो चौंक गई। मगर यार, इससे पहले कि जूफी कुछ कहती या पूछती, नीलोफर ने हकीकत बतानी शुरू की। मैं और सज्जाद एक दूसरे के बचपन के साथी हैं और एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। मैंने जब भी शादी के सपने देखे सज्जू के साथ ही देखे। हमारे ही घोट में रहता है, गरीब जरूर है मगर बहुत मोहब्बत करता है। मगर मेरी तकदीर ने अजब खेल खेला। बाबा का वडेरों के आदमियों के साथ झगड़ा हुआ था, जिसमें उनका एक आदमी मारा गया जो कि वडेरे का बेटा था, और यूं बदले में पंचायत ने बाबा को यह फैसला सुनाया कि मेरी शादी वडेरों के यहाँ हो, यानी खून बहा में मुझे सौंपा जाए। अब इन सब में मेरा, सज्जो का, हमारी मोहब्बत का क्या कसूर है? सजा तो हमें मिली ना। वडेरे तो वैसे भी मगरूर और अखड़ मिजाज होते हैं, और सुना है वो तो शहर से बहुत कुछ पढ़ कर आया है। लेकिन मेरा दिल राजी नहीं, मुझे नहीं करनी ये शादी। बाबा को भी कहा था, मगर वो पंचायत के फैसले के आगे मजबूर हैं। बहती आंखों और अफसुर्दा चेहरा लिए नीलोफर ने तमाम बात बताई, जिसे सुनकर जूफी तो गोया सुनसी हो गई। आज तक गांव की रस्मों और रिवाजों के बारे में सिर्फ सुना था, और अब यूं हकीकत को सामने देखकर तो गोया उसका खून खोल उठा था। तुम फिक्र मत करो, मैं अपने बाबा से बात करूंगी, उसने तसल्ली दी। नहीं नहीं यार, तुम नहीं जानती, पंचायत का फैसला सारे घोट के लोग मानते हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। वो बेबसी से रो दी। अच्छा, तुम हौसला रखो, कोई ना कोई हल तो होगा ही, सोचती हूँ मैं। वो बहुत गौरव फिक्र से उसके मसले की हल की तलाश में मसरूफ थी। जब यकलक ढोल की शहनाई की आवाज गूंजने लगी, उसके गौरव फिक्र का तसलसल टूट गया। अरे ये इतना शोर? उसने हैरानी से जोर जोर से आती ढोल की आवाज सुनकर पूछा। आज मेहंदी है मेरी, नीलोफर ने अफसुर्दा लहजे में कहा। यार तुम यूं उदास मत हो, देखो कोई ना कोई सोल्यूशन, मेरा मतलब है हल होगा इस शादी को रोकने का। हाँ, अगर तुम ये शादी किसी तरह रोक दो तो मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार होंगी। नीलोफर ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लेते हुए इल्तिजा की। हाँ, मैं सोचती हूँ कुछ, वैसे मैं बाहर जाकर देख आऊं। ढोलक की इतनी तेज आने वाली आवाजों पर उसका दिल ललचाने लगा।
اس کے اس انداز پر نیلوفر کو بھی ہنسی آ گئی۔ ہاں ہاں بالکل، تم جاؤ، یہ رسم شہر میں دیکھی ہوگی، اب گھوڑکی بھی دیکھو۔ وہ اسے بہت سی تسلیاں اور حوصلے دے کر باہر نکل آئی۔ ڈھول کی آواز چاچی نورا کے گھر سے آ رہی تھی۔ اس کے قدم اس سمت میں بڑھ گئے۔ جب ہی راستے میں چاچی نورا مل گئیں، ریشم کا ستاروں سے مزین دوپٹہ اوڑھے جگمگ کرتے ستاروں کے بیچ چاند کا ٹکڑا لگی، مگر اس کو اس وقت زہر لگ رہی تھی۔ ایسی بھی کیا خود غرضی کہ اپنی اکلوتی بیٹی کو یوں رسم و رواج کی بھیٹ چڑھا دینا۔ دھی، میں تمہیں ہی بلانے آ رہی تھی۔ آجا دھی، مہندی کی رسم شروع ہونے والی ہے، تو نے تیار بھی ہونا ہے۔ وہ کہ اس کا بالکل موڈ نہ تھا اب اس ظالم سماج کے کسی رسم میں شامل ہونے کا، مگر مجبوری تھی، سو وہ چپ چاپ تیار ہونے چلی گئی۔ وہ جب تیار ہو کر باہر نکلی تو چاچی نورا کی نہ کرنے کے باوجود اس کے بالوں میں موتیوں کا پراندہ بھی گونج چکی تھی۔ اسے اس وقت اپنا آپ دیکھ کر بہت ہنسی آنے لگی۔ وہ بھی انہی کی طرح گاؤں کی لڑکی لگ رہی تھی۔ صحن میں پہنچی تو حیران ہو گئی۔ ابھی شام میں جب یہاں سے گئی تھی تب تو کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ شادی والا گھر ہے، مگر اب تو منظر ہی الگ تھا۔ صحن میں موجود تخت پر ڈھول شہنائی والے بیٹھے تھے، ساتھ ہی ایک کپڑا بچھا ہوا تھا۔ ایک طرف عورتوں کا جمگٹا تھا، ذرا نزدیک جانے پر پتا چلا کہ دولہے راجا ایک شاندار سی کرسی جس پر اجرک اور کڑھائی والا گلاب بچھا ہوا تھا اس پر براجمان تھا۔ اس کے ساتھ چچا اظفر، پاپا اور بھی ایک دو مرد کھڑے تھے، شاید رشتے دار ہی تھے، جبکہ تھوڑے ہی فاصلے پر منچلی اور شوق لڑکیاں چمکیلے بڑکیلے لباس زیب تن کیے، میک اپ کا کھلا استعمال کیے اور بالوں میں پراندہ ڈالے کسی گانے پر عجیب ہی طریقے سے ناچ رہی تھیں۔ ڈھول کی تھاپ ان کے ناچنے میں اور جوش پیدا کر دیتی۔ وہیں ساتھ ہی بڑی بوڑھی عورتیں ان کے سروں پر سے پیسے وار وار کر ڈھول والے کے پاس بچھے کپڑے پر رکھتی جاتی۔ ڈھول اور شہنائی والے چارپائی پر بیٹھے اپنے کام کو بخوبی انجام دے رہے تھے۔ زوفی بہت غور سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ جب ہی چاچی نورا کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، وہ شاید کسی سے اس کا تعارف کروا رہی تھی۔ یہ اپنے نیلو کے بڑے تایا کی دھی ہے، کراچی سے آئی ہے۔ اس نے آواز کے تعاقب میں دیکھا چاچی نورا جو کچھ دیر پہلے گھوٹ کی کچھ عورتوں سے اس کا تعارف میں مصروف تھیں، اب دلہے کے پاس موجود تھیں۔ اس نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اونچا لمبا سا قد، چوڑا بدن، گھنی مونچھوں تلے انابی ہونٹ، سفید کرکتا ہوا کرتا، سر پر سندھی ٹوپی اور کندھوں پر اجرک پھیلی ہوئی تھی۔ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے وہ کافی اکھڑ مزاج اور گھمنڈی انسان لگ رہا تھا، اور عمر میں بھی نیلوفر سے 5 یا 7 سال تقریباً بڑا لگ رہا تھا۔ اپنی طرف دیکھتا پا کر اس نے مسکراہٹ پاس کی۔ زوفی کو اس کی مسکراہٹ زہر لگی تھی، وہ بھی رخ موڑ گئی۔ ڈھولک کی زور زور کی تھاپ، شہنائی کی گونج، بڑی بوڑھی عورتوں کا منچلی لڑکیوں کو پکڑ پکڑ کر ناچنے کے لیے میدان میں لانا اور پھر ان کے سر پر سے پیسے وارنا، یہ سب انوکھا بھی تھا اور نیا بھی۔ نیلوفر کی طرف سے کچھ پلوں کے لیے اس کا دھیان ہٹا تو وہ کافی دیر تک اس منظر میں کھو گئی۔ اسے بھی سب نے ناچنے پر مجبور کیا، مگر نہ ہی اسے یوں ناچنا آتا تھا اور نہ ہی اس کا دل تھا۔ دلہے کو مہندی لگانے کی رسم شروع ہو چکی تھی۔ اب چاچی نورا اور باقی سب عورتیں مہندی اور سہاگ کے گیت گا رہی تھیں۔ یہ سب صبح کے 4 بجے تک جاری رہا۔ اس کا ارادہ اور خیال تھا کہ اب یہ رسم ختم ہو گئی تو سب سوئیں گے، مگر اس کی یہ خام خیالی تھی۔ چاچی نورا کی زبانی اسے پتا چلا کہ مہندی کے اختتام کے بعد نکاح اور رخصتی ہونی ہے۔ دلہا بھی بیٹھک میں جا چکا تھا، کیونکہ وہ دوسرے گاؤں سے آیا تھا، اسی لیے اسے یہیں پاس میں گھر کے قریب بیٹھک میں ٹھہرایا گیا تھا، اسی لیے وہ بھی تیار ہونے جا چکا تھا۔ اب وہ بارات لے کر آنے والا تھا۔ چاچی نورا نے اسے بھی باقی لڑکیوں کے ساتھ نیلوفر کو تیار کرنے بھیجا، تب اس کا ذہن نیلوفر کی طرف گیا۔ اب کیا ہوگا، یہ سوال اس کے ذہن میں کوندا۔ وہ تیزی سے باقی لڑکیوں سے بھی پہلے نیلوفر کی بوا کے گھر کی طرف بڑھی۔ وہاں پہلے سے ہی کچھ عورتیں موجود تھیں جو دروازے کو پیٹ رہی تھیں، کیونکہ دروازہ اندر سے بند تھا۔ کچھ انہونی اور خطرے کی گھنٹیاں اس کے ارد گرد بجنے لگیں۔ اس کا وہم ٹھیک نکلا۔ ہائے ہائے، چھوری منہ کالا کر کے بھاگ گئی۔ یہ آوازیں تھیں یا طوفان کی آمد جس نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا؟ وہ سنسی ہو گئی تھی۔ کبھی کبھی غیر متوقع واقعات اتنی تیزی سے ظہور پذیر ہوتے ہیں کہ حیرانی کے ساتھ ساتھ کچھ پریشانی بھی ہوتی ہے۔ دل و دماغ ارد گرد سے غافل سے ہو جاتے ہیں، ہر چیز نفرت اور غصے کی لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ ابھی کل تک تو وہ خود بھی یہاں ایک مہمان کی حیثیت سے تھی اور آج پل بھر میں منظر بدل سے گئے تھے، اور اب وہ یہیں کی ہونے جا رہی تھی۔ چچا چچی کے جھکے ہوئے سر، ارد گرد سے اٹھتی دبی دبی سرگوشیاں، سندھی میں دیے جانے والے تانے، دلہے کا غصہ، اس کے پاپا کی التجا، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اس کا سر خود بخود جھکتا چلا گیا۔ وہ چاہ کر بھی نہ کہہ پائی، کسے کہتی؟ یہاں پاپا کے سوا تھا کون؟ جب باپ ہی خود سوالی بن کر ہاتھ جوڑے بیٹھا تھا تو وہ کیسے انہیں خالی ہاتھ لوٹا دیتی؟ وہ نہیں جانتی تھی آنن فانن سب کیسے ہوا۔ ممی اور اپیا کا فون بھی آیا تھا، وہ چپ چاپ ان کی باتیں سنتی رہی تھی۔ وہ کیا کہتی، کس سے شکوہ کرتی، کہاں جاتی؟ ہر راستہ اس کے لیے بند قفل تھا۔ رخصتی سے چند منٹ پہلے پاپا اس کے پاس آئے تھے۔
देखो बेटा, मैं भले इस गांव का बासी जरूर रहा हूँ, मगर फजूल रस्म रिवाज को मैं भी नहीं मानता। माना कि ये सब बहुत अचानक और गैर मुतवक्का है, मगर देखो बेटा, मैं इतना भी खुदगर्ज नहीं हूँ कि अपनी ही औलाद का बुरा चाहूँ। मैं भी इस बात पर एग्री नहीं, मगर जब कल अज़ाम शाह से मिला और बातचीत की तो पता लगा वाकई वो औरों से मुख्तलिफ है। वो ना सिर्फ पढ़ा लिखा बल्कि सुलझा हुआ इंसान है। हर बाप की तरह मुझे भी अपनी बेटी के लिए एक ऐसे ही दामाद की तलाश थी। शायद कुदरत ने जोड़ी यूं ही बनाई हो। बेटा, बस मेरी इल्तिजा है, मेरा मान, मेरी इज्जत रखना। जानता हूँ अभी तुम भी अपनी मम्मी की तरह मुझसे नाराज हो, मगर गुड़िया, कभी कभी वक्त के हाथों में हमारी जिंदगी की डोर होती है और फिर वक्त ही हर बात का फैसला करता है। वैसे भी हर चीज का एक सही वक्त होता है। अभी ये सब इतना अचानक हुआ कि तुम क्या, मैं भी ठीक से इसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा, पर सही वक्त आने पर मेरा फैसला, मेरा इंतखाब तुम्हें गलत नहीं लगेगा। नया माहौल, नई जगह तुम्हारे लिए रहना थोड़ा मुश्किल होगा, मगर मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है कि वो वहाँ एडजस्ट हो जाएगी। ना सिर्फ एडजस्ट बल्कि एक अच्छी बहू बनकर वहाँ सबके दिल भी जीत लेगी, है ना बेटा? बस मेरी दुआ है सदा खुश रहो, मेरा फैसला तुम्हारे लिए एक अच्छा फैसला साबित हो और कामयाब जिंदगी गुजारोगी तुम। वो उसके सर पर हाथ रखकर बहुत सी दुआएं और हदायतें देकर चले गए। अब क्या बचा था कहने को और सुनने को? इतना सब कुछ हो चुका था कि आंखों से वो आंसू भी ना टपका सकी। वो लोग जब तक कस्बे में दाखिल हुए तब तक रात की तारीकी फैल चुकी थी। कस्बे में उनकी बड़ी सी हवेली शादी के घर का रवायती नमूना बनी हुई थी। रोशनियां, सजावटें, मेहमानों का शोरोगुल, ढोलक की थाप पर रवायती सिंधी गीतों से इस्तकबाल हुआ। वो इन सब चीज़ों से लाताल्लुक अजनबी और अनजानी औरतों के घेरे में हवेली में दाखिल होकर लॉन, राहदारी और कमरे दर कमरों से गुजरते हुए एक बड़े से हॉल नुमा कमरे में पहुंचा दी गई थी। सर पर मौजूद अजरक का बड़ा सा घूंघट उसकी घुटन में इतना इजाफा नहीं कर रहा था जितनी उसके अंदर घुटन मौजूद थी, क्योंकि अंदर की घुटन बाहर की घुटन पर हावी थी। इसीलिए उसे उसकी ना परवाह थी और ना ही कोई एहसास। पता नहीं किन किन रस्मों से उसका स्वागत हुआ और किन किन से तारुफ। वो तो बस गुमसुम और लाताल्लुक सी बुत बनी बैठी थी। तभी एक बड़ी बी, जो शायद हवेली की बड़ी लग रही थी, उसने इसे मुंह दिखाई से नवाजा और साथ ही उनके कहने पर उसे अपने रूम में पहुंचाने की जिसारत की गई तो उसने सुकून का सांस लिया। वो आज दुल्हन बनी बैठी थी, मगर दिल में ना कोई जज्बे थे, ना कोई उमंग थी। आंखों में कोई ख्वाब ना था और ना ही दिल के उताक पर ख्वाहिशों के चिराग खुशियों की सरजमीन पर रोशन थे। उसका दिल हर तरह के जज्बात से आरी बंजर जमीन की मानिंद हो गया था। भला यूं भी होना था? उसने कब उसकी संगत के ख्वाब देखे थे जिसे उसका हमराही बना दिया गया था? कमरे में पहुंचकर उसने झट से घूंघट उलट दिया और इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। उसका ख्याल था कि सादा सा सिंधी कल्चर की अक्कासी करता कमरा होगा, मगर उसका ख्याल गलत साबित हुआ। हल्के पर्पल रंग से रंगे इस कमरे में सब कुछ रंग की मुनासबत से था। गोल्डन और पर्पल शेड के मखमली पर्दे, फर्श पर बिछा गोल्डन और ब्लैक दबीज कालीन, गोल्डन लकड़ी से बना फर्नीचर, एक साइड पर 2 कुर्सियों और मेज रखकर सिटिंग रूम बनाया हुआ था। साथ ही दीवार गिर अलमारी थी। उसके साथ ही ड्रेसिंग टेबल पर बहुत से जेंट्स परफ्यूम, स्प्रे और भी पता नहीं क्या क्या रखकर सजाया गया था। बेड के बिल्कुल सामने शो केस पर बड़ा सा टीवी, नीचे सीडी प्लेयर, डीवीडी और रैक में मौजूद तरतीब से रखी किताबें कमरे के मकीन के ज़ौक़ का मुंह बोलता सबूत था। वो बैठे बैठे उकता गई तो अजरक नुमा बड़े से दुपट्टे को उतार कर बेड पर रखा और ड्रेसिंग टेबल के सामने जा खड़ी हुई। जो सूट वो नीलोफर की शादी में पहनने को लाई थी वही जेबतन किया हुआ था। मजेंडा कलर का जॉर्जेट का सूट था जिस पर हल्का हल्का सितारों का काम था और अभी इस सूट में वो बराए नाम दुल्हन बनी थी। बारात के साथ आया नीलोफर के लिए सामान बमा जेवरात उस वक्त उसके बदन पर सजा हुआ था। यकदम उसकी आंखों में मिर्चें सी भरने लगीं। क्या कोई ऐसी भी दुल्हन होगी? क्या किसी की ऐसी भी शादी होती होगी जिसे ना मेहंदी लगी, ना तैयार किया गया, ना सुर्ख जोड़ा पहनाया गया, जिसे ना अपने ससुराल की खबर ना अपने शोहर का पता? उसे यकलख्त बेतहाशा रोना आया था। उसने नोच नोच कर अपने जिस्म पर सजा सारा जेवर उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर ढेर कर दिया। वो अपनी बेबसी के मातम में इस कदर खो गई थी कि उसे पता ही ना चला कि कोई रूम में दाखिल भी हो चुका है। ना सिर्फ दाखिल बल्कि बेड पर बैठा उसकी सारी कार्रवाई देख रहा है। ये सब करने से तुम्हें सुकून मिलता है तो बेशक करो, मगर एक बात याद रखना, ये रोना धोना, ये सोग, ये मातम तुम इस कमरे की 4 दीवारी तक महदूद रखना। हम इस कस्बे के वडेरे हैं, बहुत इज्जत है हमारी इज्जत पर आंच भी आए ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अकब से आने वाली मुखालिफ की आवाज़ पर वो चौंकी और पलटी। कलफ वाला ब्लैक सूट पहने, सर पर अजरक की ही पगड़ी पहने, फूलों का हार उतार कर बेड पर रखते हुए इससे मुखातिब था। इसके और निज़ाम शाह के दरमियान 3 से 4 कदमों का फासला था। उसके जज्बात, एहसासात सब लापता थे।
وہ ریت کی بھربھری دیوار کی مانند محسوس کر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جائے تو کہاں، آگے کنواں پیچھے کھائی کی مانند۔ آگے وہ شخص موجود تھا جس کے اقرار کی وجہ سے آج اس کا اپنا وجود ہی بدل چکا تھا۔ وہ زوفی سے زوفی شاہ بن گئی تھی۔ سامنے موجود شخص اس کا مجازی خدا تھا، قانوناً اور شرعاً اسے حق تھا۔ تبھی اچانک وہ خود ہی اس کے قریب چلا آیا، ایک ہاتھ سے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے جبکہ دوسرا ہاتھ اس کی کمر کے گرد حمائل کرتے ہوئے اسے اپنی طرف کھینچا۔ تم لڑکیاں اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو؟ بہت مہان، بہت بڑی چیز۔ تم لوگ یہ کیوں بھول جاتی ہو کہ جن مردوں کو تم اپنے آگے پیچھے گھما سکتی ہو وہ چاہے تو تمہیں اپنی غلام بنا کر رکھے، اور تم لوگوں کی حیثیت بھی کیا ہے اس کے سامنے، ایک جوتی ہی کے برابر۔ تم خوبصورت ہو مگر تمہارا یہ حسن آج تمہارے لیے باعث عذاب ہوگا۔ اگلے ہی پل زوفی کی گھٹی گھٹی چیخیں اس کے سینے میں ہی دم توڑنے لگیں۔ بالکل اسی طرح اس انوکھی اور البیلی شب زفاف کا حال بھی مختلف نہ تھا۔ اپنا حق سمیٹ کر کسی فاتح جنرل کی مانند اپنی فتح اور مردانگی کے نشے میں چور بے خبر وہ سو چکا تھا، جبکہ اس کی چیخیں، آنسو اس کے اندر ہی دم توڑ چکے تھے۔ آنکھیں شدت گریہ سے سرخ ہو چکی تھیں۔ پڑھا لکھا، سلجھا ہوا، شریف انسان۔ پاپا کے کہے الفاظ اس کے ارد گرد کھڑے اس کی بے بسی اور حالات پر ہنس رہے تھے۔ شدت سے اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کاش کوئی اپنا ہو جسے وہ اپنے دل کا حال سنائے، جس کے گلے لگ کر وہ اس انسانی شکل کے بھیڑیے کے کرتوت بتا سکے جس نے نہ جانے کس بات کا اسے بدلہ لیا تھا۔ مگر آس پاس اس کی آہوں اور آنسوؤں کے سوا کوئی نہ تھا۔ نہ جانے کب یوں ہی صوفے پر بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ اس کی اس بے نام سی شادی کو 3 دن ہو چکے تھے۔ اس کا ولیمہ دوسرے ہی دن بڑے دھوم دھام سے رکھا گیا تھا۔ پورے قصبے اور حویلی کو خوب سجایا گیا تھا۔ ہر طرف جشن کا سماں لگ رہا تھا جبکہ ممی نہیں آئی تھیں، کیونکہ وہ اب تک دونوں باپ بیٹی سے ناراض تھیں۔ یاسر صاحب سے ناراض ہونے کا جواز تو بنتا تھا، مگر زوفی سے ناراضگی کی وجہ اس کی خاموشی تھی کہ اس نے بلا چوچرا رضامندی کیسے دے دی۔ ان 3 دنوں میں وہ اپنے سسرال والوں کے بارے میں تھوڑا بہت جان چکی تھی۔ ویسے بھی اس کے سسرال میں تھے ہی کون، ایک بیمار تایا جی، اماں جیجل دادی اعظام شاہ اور دانیہ اعظام شاہ بہن، باقی کچھ نوکر چاکر، یہ تھے حویلی کے مکین۔ تایا خادم علی اپنی اکلوتے اور جوان جہان بیٹی کی وفات کے بعد سے چارپائی سے لگ چکے تھے، جبکہ اماں جیجل کا نچلا دھڑ ایک حادثے میں پیرالائز ہو چکا تھا، اس لیے وہ ہمہ وقت ویل چیئر پر ہی ہوتی تھیں۔ دانیہ نے پہلے قصبے سے ہی میٹرک کیا تھا اور پھر آگے اس کے بھائی نے ہی اسے پڑھایا تھا، کیونکہ گاؤں میں زیادہ تعلیم کا رواج عام نہ تھا۔ یہی حال کچھ قصبے کا تھا۔ ان 3 دنوں میں وہ ان دونوں سے کافی گھل مل گئی تھی، اور یہ اس کے سسرالیوں کی بدولت ہی تھا، جو کہ بہت سادہ دل اور مخلص تھے۔ وہ اس کی دلجوئی میں ہمہ وقت لگے رہتے تھے۔ نیلوفر کی شادی کی غرض سے آتے ہوئے وہ 2 سے 3 جوڑے لائی تھی۔ اسے کیا پتا تھا کسی اور کی شادی میں شرکت کرتے کرتے وہ خود مس سے مسز بن جائے گی۔ جب ہی اماں جیجل نے ہی آس پاس کی کسی درجن سے اس کے لیے کچھ کپڑے سلوا لیے تھے اور کچھ سلوانے کے لیے دے دیے تھے۔ اعظام شاہ سے اس کا سامنا ولیمے کے بعد سے اب تک نہیں ہوا تھا۔ اسے پتا چلا تھا کہ وہ کسی ضروری کام سے حیدرآباد گیا ہوا ہے۔ وہ تینوں حویلی کے باغیچے میں بیٹھی ہوئی تھیں۔ جب ہی شام کے کاموں کے لیے ماسی چلی آئیں، زوفی اماں جیجل کے سر میں تیل سے مالش کر رہی تھی۔ حالانکہ ان کاموں کے لیے ملازمہ تھی، مگر شفیق چہرے والی بے لوث اور پرخلوص سی اماں جیجل میں سے اسے ایک پدرانہ پرشفیق بزرگ مل گئی تھی۔ وہ بھی اسے ایک بیٹی کی طرح چاہتی تھیں۔ تبھی زوفی کو بھی ان کے پاس بیٹھنا اور ان کے کام بڑھ چڑھ کر کرنا اچھا لگتا تھا۔ آخر اس زبردستی کی شادی میں بڑی بی اور اس سیدھی سادی دیہاتی لڑکی کا کیا قصور تھا؟ ان کے خلوص اور پیار و اپنائیت کے بدلے میں اتنا کرنا تو اس کا بھی حق بنتا ہی تھا۔ تبھی برابر میں رکھی کرسی پر سیل بیپ ہوا۔ گلفشاں آپی کی کال آئی تھی۔ ان سے بات کر کے اس کے دل کا بوجھ کچھ کم ہو گیا تھا۔ دھی رانی، تیرے شاہ پتر سے کوئی بات ہوئی ہے؟ نئی نویلی کنوار کو چھوڑ کر خود شہر جا بیٹھا ہے۔ وہ جو کال ڈسکنیکٹ کر بیٹھی تھی، اماں جیجل کی اس اچانک بات پر وہ بوکھلا گئی۔ وہ اماں، ادا کا نمبر بھرجائی کے پاس نہیں، میں کر لوں گی کال۔ دانیہ نے بروقت بات سنبھالی تو اس نے تشکر آمیز نظروں سے دانیہ کی سمت دیکھا، جہاں پھیلی مسکراہٹ نے زوفی کو کسی اپنے کے آس پاس ہونے کا احساس دلایا۔ بات سن، نمبر لے ادا کا اور بھرجائی کو دے۔ اماں جیجل کے حتمی انداز پر چاروں ناچار دانی نے زوفی کو نمبر دیا۔ زوفی چاہ رہی تھی کہ اسے بات نہ کرنی پڑے، مگر اماں جیجل کے اصرار پر اسے کال ملانی ہی پڑی۔ السلام علیکم، جی وہ آپ گھر کب آئیں گے؟ سلام کے ساتھ ہی اس نے اپنا مدعا بیان کیا۔ آپ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی؟ بہتر ہوگا کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ دوسری طرف سے آتی کاٹ دار آواز نے اس کی بولتی ہی بند کروا دی تھی۔ کنوار، کیا کہہ رہا ہے شاہ پتر؟ کب تک آئے گا واپس؟ وہ جو کچھ سیکنڈ کے لیے ساکت سی کھڑی ہوئی تھی، اماں جیجل کی آواز پر چونکی۔ اس کی سوالیہ نظریں بے چین تھیں جواب سننے کے لیے۔
वो अम्मा पूछ रही हैं कि आप कब तक आएंगे। रुकते झिझकते उसने अपनी बात मुकम्मल की। ओह अच्छा, उनसे कहना मेरी फिक्र ना करें, मैं आ जाऊंगा जल्द, बस कुछ जरूरी काम निपटाने हैं और आइंदा मुझे कॉल मत करना, समझी तुम। फुनकारते हुए लहजे में उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अम्मा जेजल उसके जवाब की मुंतजिर थीं। वो अम्मा, वो कह रहे हैं कि कुछ काम है, वो निपटा के जल्दी आ जाएंगे, उसने अपने लहजे को नॉर्मल बनाते हुए कहा। चलो अच्छा है तुमने बात कर ली, अब देखना अपनी नई नवेली जाल की आवाज़ सुनकर वो दौड़ा चला आएगा, अम्मा जेजल ने मुस्कुराते हुए कहा। जवाब में वो मुस्कुरा भी ना सकी थी, उसके दिल पर मनोबोझ आन पड़ा था। अम्मा जेजल को मासी हाजरा अंदर ले जा चुकी थीं। अब लॉन में दानी और जूफी ही बैठे थे। भरजाई, तभी दानी की आवाज़ पर वो अपनी सोचों के दायरे से बाहर निकल आई। पता है भरजाई, जब हमें नीलोफर का पता चला और साथ ही अदा ने फ़ोन पर आपका बताया, क्योंकि अम्मा जेजल की माजूरी और फिर ताया जी की नासाज तबीयत को देखते हुए हम बारात में नहीं आए थे, तभी अदा से आपका यूं अफरा तफरी के निकाह का सुनकर हम सब गुमसुम हो गए थे। लातादाद अंदेशे और फिक्रें सताने लगी थीं कि कहीं गुस्से और जल्दबाजी में अदा ने गलत इंतखाब और गलत फैसला ना कर लिया हो। अम्मा जेजल और ताया जी का यही कहना और सोचना था कि आप शहर की हैं, यहाँ कैसे रह पाएंगी और कैसे सब समझेंगी, मगर सबके अंदाजे गलत साबित हुए। आप तो बहुत अच्छी निकली, सब डर सब फिक्रें उड़न छू हो गईं। सच कहूँ तो आप जैसी प्यारी और अच्छी बहू इस हवेली को डिजर्व करती है। दानी की बातें सुनकर जूफी के चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट उभरी। भरजाई, हमें पता है ये सब जो अचानक हुआ ठीक नहीं हुआ, यूं जल्दबाजी में, पर यकीन मानिए भरजाई, हम कभी आपके साथ कोई ज्यादती नहीं करेंगे, यहाँ आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और तुम्हारा भाई जो मुझे तकलीफ दे गया, मेरे साथ जो ज्यादती कर गया, उसका अजाला कौन करेगा, जूफी ने दिल में सोचा। अच्छा भरजाई, मैं सोच रही थी कि रवायती दुल्हनों की तरह आपका 16 सिंगार नहीं हुआ, इतनी अफरा तफरी में शादी हुई कि ना मुझे अपने अरमान निकालने का मौका मिला और ना ही आपको मेहंदी लगाने का, तो क्यों ना एक बार फिर से आपको दुल्हन बनाया जाए। दानिया अपनी बात कहकर फौरन से पेशतर भाग खड़ी हुई। जूफी जो उसकी बातें गौर फक्र से सुन रही थी, उसकी आखिरी बात पर चौंकते हुए उसके पीछे लपकी। इधर आओ, मैं तुम्हारे सारे अरमान निकालूं। पर भरजाई, आप पहले दुल्हन तो बन जाएं, मेरे अरमान खुद ही निकल जाएंगे। वो दोनों आगे पीछे लॉन में इधर से उधर भाग रही थीं, जबकि ताया जी, जिनका कमरा हवेली से अलग लॉन की तरफ उनकी फरमाइश पर बनाया गया था, वो अपनी खिड़की से लॉन के इस बागीचे में उड़ते इन 2 तितलियों को देखकर मुस्कुरा दिए। आज सुबह से उसने हवेली के जाती कामों की जिम्मेदारी संभाली हुई थी। हालांकि अम्मा जेजल ने जूफी को मना भी किया, मगर इस पर जो कामों का भूत सवार हुआ था, वो इतनी आसानी से उतरने वालों में से ना था। वो शुरू से ही ऐसी थी, जिस काम का इरादा करती उसे इख्तिताम तक पहुंचाकर ही दम लेती। शुरुआत उसने अपने और शाह के रूम से की। यूं तो शाह का रूम ठीक ठाक था, मगर उसे ठीक तरह से तरतीब किया जाता तो वो और भी बेहतर लगता। तभी वो मुलाजमों को लेकर सेटिंग चेंज करने में लग गई। गैलरी, जिसकी आराइश पहले मसनूई घास को पूरे फर्श पर लगाकर और साइड पर 2 इजी चेयर रखकर की गई थी, जूफी ने वहां भी अपनी फनी सलाहियतों के जौहर दिखाए और वहां से पहले उसने चेयर्स को बाहर निकालकर मुलाजिम से यहाँ केन से बनी बास्केट चेयर मंगवाकर लगाने का ऑर्डर दिया। साथ ही माली बाबा से उसने बाग में मौजूद कुछ चंबेली, गुलाब और गुल दाऊदी जैसे पौधों के गमले लाकर उसकी एक साइड पर तरतीब से लगाए। साथ ही कुछ मसनूई बेलों से गैलरी की दीवार को आरास्ता किया। अब उसके रूम की यह गैलरी एक छोटे से बाग का मंजर पेश कर रही थी। इन कामों से फारिग होकर उसने ग्लास पर एक लाइट से कलर का पर्दा लगा दिया। मुलाजमीन के साथ साथ दानिया ने भी उसकी सेटिंग और चेंजिंग की काफी तारीफ की। फिर वो नीचे आ गई। पहले सूप बनाकर अम्मा जेजल और ताई जी को भिजवाया, फिर किचन के शेल्फ, कैबिनेट, सब कैबिनेट के मिसालों के जार और बाकी सब सामान को अपनी तरतीब से रखवाया। किचन में उसने मिनी प्लांट रखवा कर खूबसूरत सा तासुर दिया था। यूं दोपहर तक वो अच्छी खासी मसरूफ रही थी। लंच करके फारिग होने के बाद उसने अपने कमरे का रुख किया। उसका मूड था कि वो एक फ्रेश बाथ लेकर कुछ देर आराम करेगी। अम्मा जेजल के दिए हुए सूटों में से उसने एक प्याजी रंग का खूबसूरत सा सूट निकाला, जिस पर हल्की हल्की सी सिंधी कढ़ाई हुई थी। नहाने के बाद उसे अपना आप काफी हल्का फुल्का और फ्रेश महसूस होने लगा। जब भी उसकी पलकें बोझल होने लगी, उसकी आंख रूम के डोर पर होने वाली दस्तक पर खुली। वो दरवाजे की जानिब बढ़ गई जहां दानिया मौजूद थी। भरजाई, वो जो दरवाजा वहाँ होते देखकर बोलने लगी थी, सूफी पर नजर पड़ते ही चुप हो गई। वाह भरजाई, बड़ी सोहनी लग रही हो आप तो, बस जरा सी कमी है। वो उसका हाथ थामे अपने रूम में ले आई। अरे पहले बताओ तुम क्या कहने आई थी, लूफी ने उसकी जानिब देखते हुए पूछा। वो भी बता दूंगी, पहले जल्दी से फ्रेश होकर आए, मैं वेट कर रही हूँ आपका।
दानी ज़ूफ़ी को वॉशरूम की जानिब धकेलते हुए बोली। फ्रेश होने के बाद जब वो बाहर आई तो दानी ज्वेलरी में उलझी नजर आई। अरे ये सब क्या हो रहा है? भरजाई, मेरे पास कोई मोतियों का जड़ाऊ हार नहीं, आपके पास है तो मुझे देंगी प्लीज, दानिया ने इल्तिजा करते हुए कहा। अरे हाँ बिल्कुल, अम्मा ने ही मुझे मुंह दिखाई पर दिया है, रुको मैं ले आती हूँ। अगले चंद मिनटों में वो हार का डब्बा उठाए दानी के रूम में थी। दानी, आज कुछ खास है क्या? मुलाजिम भी सब यहाँ से वहाँ अलर्ट होकर भाग रहे हैं, फिर ये सब तुम्हारी तैयारियां? दानी भी खिलाफे मामूल आज निक सिक से तैयार हुई थी। जी भरजाई, आज कुछ स्पेशल है, मगर पहले आपको मेरी बात माननी होगी, जल्दी से ये हार पहन लें। दानी ने जवाब देने के साथ ही वही जड़ाऊ हार ज़ूफ़ी की तरफ बढ़ाया। इतना हबसज़दा माहौल हो रहा है, ऊपर से ये सब, ज़ूफ़ी ने उलझन से कहा, मगर दानिया ने ज़ूफ़ी के ना करने के बावजूद उसे हार पहना दिया था। अम्मा जेजल ने भी जड़ाऊ मोतियों का पूरा सेट दे डाला था, जो कि झुमकों और 2 अदद कंगन पर मुश्तमिल था। इतने हबसज़दा मौसम में ये बनाओ सिंगार, उसने कोफत से आईने में अपना अक्स देखा। उफ भरजाई, नई नवेली दुल्हन तो पता नहीं क्या क्या पहनती है, और एक आप हैं कि सादगी की मूरत। अच्छा चले, मैं आपको ज्यादा तैयार नहीं करती, हालांकि मेरा फुल मूड था आप पर अपने हुनर आजमाने का, लेकिन चलें फिर किसी और वक्त। फिलहाल आप सिर्फ लिपस्टिक लगा लें, काजल तो वैसे भी आपने लगाया हुआ है। दानिया ने ठीक ठाक उसकी क्लास लेते हुए रेड लिपस्टिक उसकी जानिब बढ़ाई। उफ ये कलर, ना बाबा, ये इतना तेज चुभता हुआ कलर, आई डोंट लाइक इट। ज़ूफ़ी ने फौरन इनकार कर दिया, जिस पर दानी ने नाराजगी जताते हुए मुंह फुला लिया। एक ही तो यहाँ उसकी सहेली थी और वो कैसे उसकी नाराजगी बर्दाश्त करती। तभी तोहन करहन उसे लगानी पड़ी। तभी फरते मुसरत के मारे दानिया उसके गले लग गई। अच्छा बस हाँ, ये लाड प्यार बाद में, अब असल बात पर आओ जल्दी, ज़ूफ़ी ने थोड़ा रौब जताते हुए कहा। हाय रब्बा भरजाई, आप तो सचमुच की फिल्मों वाली भरजाई लग रही हो। अच्छा नीचे चलें साथ ही, फिर खुद देख लीजिएगा। जब वो उसके हमरा नीचे मौजूद बड़े से हाल नुमा ड्राइंग रूम में दाखिल हुई तो हैरत और खुशी से उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। धीरानी, आ जाओ बेटा। अम्मा जेजल की आवाज उसे हॉल में लाई तो वो मम्मी पापा कहते हुए अंदर की जानिब बढ़ी। मम्मी पापा से मिलते हुए आंसू खुद ब खुद आंखों की पलकों से आजाद होकर उसके गालों पर बिखरने लगे। दिल का बोझ हल्का हुआ तो उसने अपने सामने नजर दौड़ाई। पता नहीं किस वक्त वो आया था, शायद तब जब वो सो रही थी और अब एक टांग पर दूसरी टांग चढ़ाए सामने सोफे पर विराजमान मुहज्जिब बना बैठा था, जैसे उससे ज्यादा शरीफ और मासूम इंसान शायद ही कोई और हो। पुरतकल्लुफ डिनर के इख्तिताम पर वो हैरान थी कि इतनी सब तैयारियां इतने कम वक्त में कैसे हो गईं, जबकि कुछ बाजारी आइटम भी थे खाने में। डिनर के बाद जब चाय बनाकर वो सबको सर्व कर रही थी, तभी तन्हाई पाकर मम्मी ने घुमा फिराकर सबके रवैये के बारे में दरियाफ्त करना चाहा। उसे शिकायत होती तो कहती ना, दानिया, अम्मा जेजल, ताया, हत्ता के मुलाजिम तक सब इतने अच्छे और पुरखलूस लोग थे। पर जैसे ही उसके लबों पर शाह का नाम आया, फौरन से पेशतर मम्मी ने कहा, हाँ बेटा मैं जानती हूँ सब, तुम्हारे पापा से मैं बहुत लड़ी थी कि आखिर ऐसा जुल्म मेरी ही बेटी के साथ क्यों, अपने गांव के रस्म रिवाजों की भेंट मेरी लाडली बेटी को क्यों चढ़ा दिया। मगर जब अजाम हमें लेने घर आया, हमसे मिला, फिर रास्ते भर उसकी बातें, हमारे लिए उसकी नज़रों में इज्जत और एहतराम देखकर मुझे भी तुम्हारे पापा के इंतखाब पर फख्र हुआ। और फिर बाकी अंदेशे तुम्हारी नंद बीजी वगैरह से मिलकर दूर हो गए। तुम्हें याद है ना, मैं अक्सर कहा करती थी, काश मेरा बेटा होता। आज इज़ाम से मिलकर ये ख्वाहिश पूरी हो गई। क्या कोई माँ बाप होंगे इतने खुशनसीब जिन्हें इतना अच्छा घराना और समझाना मिला हो अपनी बेटी के लिए। यूं तो गुलफिशा का शौहर भी बहुत अच्छा है, मगर मुझे उसकी तरफ से कभी टेंशन नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि ससुराल नाम से उसका सामना ही नहीं पड़ा। तुम्हारी तरफ से बहुत परेशान थी और यहाँ आकर मेरी सब फिक्रें खुशियों के रंगीन पानी से धुल गईं। बेटा, जोड़ियां तो ऊपर वाले ने पहले से ही बनाई होती हैं, बस शायद किस्मत में तुम दोनों के मिलन का साथ यूं ही लिखा हो। मगर सच पूछो तो ये मिलनसार और सादा लोग बहुत अच्छे हैं, हमसे भी ज्यादा इन्हें तुम्हारा ख्याल है। सबके रवैयों में तुम्हारे लिए प्यार और मान है, लेकिन फिर भी तुम यहाँ मिसफिट हो, तकलीफ में हो, कोई शिकायत हो तो बोल दो। बस एक इल्तिजा है, हमारा भी मान रखना, क्योंकि ये शादी जो इत्तफाकिया तौर पर हुई थी, मगर अब यही वो डोर है जिसे तुम्हें थामे रखना है ताउम्र। तुम्हारा फर्ज है और तुम्हारी जिम्मेदारी भी। मुझे अपनी समझदार बेटी पर पूरा भरोसा है। मम्मी का लहजा राहत भरा था, जबकि ज़ूफ़ी के होंठों पर मचलती शिकायत दम तोड़ गई। चाहने के बावजूद भी वो कह ना पाई। रात गहरी होने से पहले पहले वो लोग निकल गए थे, क्योंकि आज मौसम के तेवर भी कुछ ठीक ना थे और फिर इन्हें चाची नूरा की तरफ भी जाना था। जाते जाते वो काफ़ी सारा सामान, कपड़े, ज्वेलरी, ज़ूफ़ी की सब फेवरेट चीज़ें वगैरह उसे दे गए थे। हालांकि अम्मा जेजल ने मना भी किया था, मगर उसकी अम्मी का इसरार था कि उन्होंने अपनी बेटी को कुछ भी नहीं दिया।
इसीलिए ये सब उनकी बेटी का हक है और उसकी अदायगी इन लोगों पर फर्ज। और यूं एक अच्छे दिन का इख्तिताम हो गया। आज वो दिल से निजाम शाह के इखलाक और अपनायत की कायल जरूर हुई थी, मगर फिर भी गुजरी कुछ रातें अब भी उसे खौफ में मुब्तला करने के लिए काफी थीं। उसका ख्याल था कि अजाम की वापसी अब सुबह तक ही होगी, मगर उसकी ये खाम ख्याली ही थी। आधी रात के जाने किस पहर उसकी वापसी हो चुकी थी। फिजा में आमद बहार की आहटें थी, हल्की हल्की धूप और कमरों में खुशगवार ठंडक का एहसास। ऐसी खुशगवारियत तारी थी, एक बहुत ही खूबसूरत दिन का आगाज था। हवा की शोरीदा सरी में इजाफा हो गया था। गैलरी के डोर पर लगी स्विंगल की मधम मधम सुरीली आवाज, कानों में जलतरंग की आवाज बहुत प्यारा तासुर दे रही थी। वो फ्रेश होकर नीचे चली आई। नाश्ते वगैरह से फारिग होकर वो दानिया से गांव के माहौल और आसपास की जगहों के बारे में बातें करने लगी। कुंवार शाह पुत्र नहीं उठा क्या अब तक? अम्मा जेजल ने जो पास बैठी तस्बीह पढ़ रही थी, जूफी को मुखातिब किया। वो अम्मा शाह पुत्र उठ गए हैं और उन्होंने अपने ही कमरे में कुंवार के हाथ नाश्ता मंगवाया है। वो जो जवाब देने ही लगी थी तभी अम्मा हाजरा ने आकर इतला दी, जहाँ कुंवार पुत्र अपने शोहर को नाश्ता दे आ। अम्मा जेजल ने उसे अपने रूम में नाश्ता ले जाने को कहा तो वो भी नाश्ते की ट्रे लिए रूम की जानिब बढ़ गई। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। वो साइड टेबल पर नाश्ते की ट्रे रखकर मुड़ने ही लगी थी जब ही उसने रूम का जायजा लिया। बेड की चादर सिरक गई थी। एक जानिब निजाम शाह के शूज पड़े थे। वो कमरे की हालत सुधारने लगी। म्यूजिक सिस्टम पर राहत फतेह अली खान का गाना, ये जो हल्की हल्की खुमारियां हैं, मुहब्बतों की तैयारियां हैं, धीमी धीमी आवाज में प्ले हो रहा था। बेड पर मौजूद अजाम के आयरन शुदा कपड़ों को सोफे पर रखकर वो बेडशीट दुरुस्त करने लगी। तभी वॉशरूम का दरवाजा खोलने और बंद होने की आवाज सुनकर वो पलटी। सामने वो सिर्फ टॉवल लपेटे उसके सामने था। उसका कसरती भीगा जिस्म बहुत नुमाया था। गीले बाल पेशानी पर बिखरे हुए थे। एक पूरा मर्दाना वजाहत से भरपूर इंसान उसके सामने था। एकदम उसने नजरें चुरा ली। ये आपका नाश्ता। वो टेबल की तरफ इशारा करके जाने लगी, तभी वो उसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। अरे इतनी भी जल्दी क्या है जाने की? मेरी गैर मौजूदगी में तो बड़े धड़ल्ले से इस रूम में घुसी चली आती हो, हर चीज अपनी मर्जी से करने लग जाती हो। उसने सीधा रूम की चेंजिंग पर चोट मारी थी। और ये जो कपड़े तुमने सोफे पर रखने बल्कि फेंकने की जुर्रत की है तो अभी ने फिर से प्रेस करने की जहमत भी कर दीजिए। आप बिला वजह मुझे तंग ना करें। आपके सब सूट प्रेस करके हैंग किए हुए हैं, इनमें से पहन लीजिए कोई। जूफी ने जाने के लिए पर तोलते हुए कहा, लेकिन मुझे तो यही सूट पहनना है। आपका शोहर हूँ और मेरी बात मानना आपका फर्ज है। उसने जूफी के चेहरे के उतार चढ़ाव और मुड़ोड़ती उंगलियों को गौर से देखते हुए कहा, आप मेरे शोहर हैं, मालिक नहीं। मैं भी आपकी बीवी हूँ, कोई नौकरानी नहीं। दू बदू जवाब देते हुए उसने इसकी आंखों में देखा, मगर गहरी ब्राउन आंखों में देखने की ताब ना रही थी उसमें। जूफी ने घबराकर फौरन नजरें झुका ली। उफ, ये अंदाज आपके। दिल चाह रहा है कि अधूरी बात कहकर वो उसकी सिमत बढ़ा, मगर इससे पहले कि वो करीब आता वो उसके पास से गुजरते हुए जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। मगर अजाम शाह भी शायद उसके भागने के इरादे को भांप गया था। तभी वो उससे भी पहले एक ही जस्ट में दरवाजे पर पहुंचकर उसके हैंडल पर हाथ रख चुका था, जबकि जूफी के हैंडल पर रखा हाथ अजाम शाह के सख्त हाथ के नीचे दब गया था। अरे बेगम जी, इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? आइए ना, साथ नाश्ता करते हैं। होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट लाते हुए अजाम ने उसे अपनी बाहों के हल्के में लिया। अजाम के गीले बदन से लगकर उसके कपड़े भी गीले होने लगे थे। वो, मुझे छोड़ें प्लीज, मुझे जाना है, उसने मिनमिनाते हुए कहा। उसकी आंखें पानी से झिलमिल हो गई थीं। अजाम ने उसकी तरफ देखा। ब्लैक फिटिंग हाफ स्लीव सूट में उसका क़यामत खेस हुस्न और नुखेज होशरुबा सरापा उसकी आंखों के सामने था। अपने लबों को बेदर्दी से कुचलती घबराई शर्माई इस वक्त वो उसे सबसे हसीन लग रही थी। वो आगे बढ़कर तमाम फासले समेट देना चाहता था। जूफी का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। आज पहली बार उसने अजाम की आंखों में कुछ अनोखा देखा था, और वैसे भी उसका दिल अजाम की तरफ हमकने लगा था। लाख कोशिशों के बावजूद भी वो अपने दिल को रोक नहीं पाई थी। शायद निकाह के बोलों में इतनी ताकत जो होती है। जूफी की आंखों से बहता आबशार उसे हाल में लाया था। उसकी गिरफ्त कमजोर पड़ी तो जूफी ने उसकी बाहों के घेरे को तोड़ने में कामयाबी हासिल की। मैं कराची जाना चाहती हूँ, अपने घर। उसने निगाहों का जाविया बदलने के लिए राह फरार ढूंढी। तो क्या ये आपका घर नहीं? ये अपना नहीं? अपने घर से क्या मुराद है आपकी? यूं राह फरार ही चाहिए थी तो फिर निकाह नामे पर साइन क्यों किए? आपके सर पर बंदूक रख कर तो कबूल है का इकरार नहीं करवाया था ना? फिर
दोनों हाथों से उसके बाजुओं को पकड़कर गुस्सीले लहजे में कहा। अगले ही पल उसे जोर से बेड पर धक्का देते हुए अपने कपड़े लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ गया, जबकि पीछे सहमी हुई सी ज़ूफ़ी इस अचानक अवतार पर गुमसुम सी रह गई। आंखें पानियों से झिलमिला उठी, हलक में आंसुओं का फंदा अटक सा गया। वो चाहती भी तो कुछ कहने के लायक ना थी, और कहती भी तो किससे? वहां सुनने को आखिर था ही कौन? दानिया को अपनी किसी सहेली के यहाँ जाना था तो अज़ाम शाह अपनी ज़मीनों की तरफ जाते हुए दानिया को भी साथ ले गया था कि वापसी में दोपहर में आते हुए वो दानिया को भी पिक कर लेगा। अब वो अकेली बोलाई फिर रही थी, क्योंकि दानिया की संगत में उसका वक्त अच्छा गुजर जाता था। जितनी बड़ी हवेली थी उतने ही नौकर थे, तभी करने को कुछ काम भी ना था। कुछ देर यूं ही लाउंज में बैठने के बाद वो किचन में चली आई। किचन में शब्बो मौजूद थी, जिसके जिम्मे ही तीनों वक्त का खाना बनाना था, जो कि ज्यादातर देसी खानों पर ही मुश्तमिल होता था। क्यों ना आज कुछ नया और डिफरेंट मेन्यू बनाया जाए। ज़ूफ़ी के दिमाग में ये ख्याल आते ही उसे मसरूफ रहने का हल मिल गया। अपने घर तो यूं वो कुकिंग कम करती थी, मगर जब भी करती तो फास्ट फूड, इटालियन, रशियन इसी टाइप के ही खाने बनाती थी। शब्बो, आज तुम रहने दो, खाना मैं बनाऊंगी, तुम सिर्फ मेरी मदद करवाना। पूरे पोर्शन में इश्तहा अंगेज महक फैली हुई थी। तभी अम्मा जेजल, जो कि ताया जी की तरफ गई हुई थी, मुलाजमा उनकी व्हीलचेयर घसीटती वहीं ले आई। अरे कंवार, तुम यहाँ क्या कर रही हो? शब्बो कहाँ है? कुकिंग करते देखकर उन्होंने हैरत से पूछा। अम्मा, मैं कब से बोर हो रही थी, इसलिए सोचा क्यों ना आज मैं ही खाना बना लूं। बेटा, वो तो ठीक है, पर जुमा 8 दिन तो हुए हैं और तुम हो के यूं कामों में लग गई। कहीं तुम इस कहावत पर अमल तो नहीं कर रही, शोहर के दिल का रास्ता मैदे से होकर गुजरता है? अम्मा जेजल ने मुस्कुराते हुए कहा। उनका दिल हो तो मैं रास्ता ढूंढूं ना, बेसाख्ता ही ज़ूफ़ी के मुंह से निकला। उसने पलटकर अम्मा जेजल की तरफ देखा, जहां कुछ देर पहले वाली मुस्कुराहट अब गायब थी। कंवार, काम खत्म करके मेरे कमरे में आ जाना, संजीदगी से कहती वो पलट गई तो उसे अपने लफ्जों पर दामत होने लगी। उफ, मैं बिना बिना सोचे समझे ही बोल देती हूँ। लगता है उन्हें बुरा लग गया। खुद से बातें करते उसने बकिया काम निपटाए, चाइनीज चावल को दम पर रखकर और बाकी तैयारियों पर नजर दौड़ाई। शब्बों को कुछ जरूरी हदायत देकर वो अम्मा जेजल के कमरे की जानिब बढ़ गई। दरवाजा नॉक करके जब वो अंदर आई तो वो बेड पर बैठी रैली बना रही थी। इतने दिनों में उसने भी अम्मा जेजल को कभी फारग नहीं देखा था। वो भी बैठे बैठे किसी न किसी काम में लगी रहती। वाह अम्मा, ये तो बहुत प्यारी है। रैली के डिजाइन पर हाथ फेरते हुए वो बेड के करीब कुर्सी पर बैठते हुए बोली। कुमार, यहाँ आ जाओ। रेली को समेट कर रखते हुए अम्मा जेजल ने बेड पर बैठने की जगह बनाई। अरे वाह, शब्बों ने ये खाने भी बनाने सीख लिए। अच्छा है, चलो अब तो रोज दावतें होंगी। खाने से भरपूर इंसाफ करते हुए अज़ाम ने कहा। मुद्दत बाद वो ये सब खा रहा था। हॉस्टल में उसने खूब ऐश किए थे और डटकर खाया था। ऐसे पकवान पर यहाँ सिर्फ देसी खाने ही बनते थे। ये सब शब्बों ने नहीं, मेरी कंवार ने बनाया है। अम्मा जेजल के लहजे में मान था। अरे वाह भरजाई, आपने तो कमाल कर दिया। सच, आपके आने से बहुत रौनक हो गई है। अब तक हवेली में रौनक आई है, अब तो किचन में भी आ गई है। दानिया ने हंसते हुए शामी कबाब की तरफ हाथ बढ़ाया। अज़ाम शाह ने कुन अखियों से उसकी तरफ देखा, जो उसी की तरफ मुतवज्जा थी। अज़ाम ने फौरन अपनी निगाहें बदल ली। दिल में वो भी दानिया की बात से मुत्तफिक था। तब्दीली उसे भी महसूस हुई थी। ना सिर्फ हवेली में रौनक दर आई थी, बल्कि अब हवेली का हर कोना, हर गोशा, चाहे उसका रूम हो या किचन, हर जगह की तरतीब बदल चुकी थी। हर चीज लश्कारे मारने लगी थी। यूं तो बहुत नौकर चाकर थे, सफाई सुथराई भी रोजाना होती थी, मगर अब तो हर अंदाज ही नया था। हर पुरानी चीज पर भी नए होने का गुमान होता था। रात जब वो अपने तमाम कामों से फारिग होकर रूम में आई तो अज़ाम शाह बेड पर नीम दराज सिगरेट के कश पर कश ले रहा था। उसे रूम में दाखिल होते ही चींकों पर चींकों की बरसात शुरू हो गई थी। तभी वो गैलरी में चली आई और केन से बनी बास्केट चेयर पर बैठ गई। ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। शादी के अवाइल दिनों में भी उसे यूं ही चींकों का दौरा पड़ा था। वो भी सिगरेट हाथों में दबाए गैलरी में चला आया। जब से गैलरी को ज़ूफ़ी ने एक सरसब्ज लॉन की शक्ल दी थी, तब से अज़ाम को भी अपने रूम का ये हिस्सा बहुत पसंद आया था। उसका भी ज्यादातर वक्त गैलरी में ही गुजरता था। तुम ठीक तो हो? लगता है सर्दी लग गई है, मौसम भी ठंडा होने लगा है। वो अज़ाम के जवाब में कुछ कहती, इससे पहले फिर चीख आ गई। उसका सतवां नाक लाल हो चुका था। रुको, मैं जुशांदा बनवाता हूँ। वो रूम में मुड़ने लगा। नहीं नहीं, सुने, आज छू। उसने जल्दी से अज़ाम का हाथ पकड़ा और अगले ही पल उसकी उंगलियों में दबोची हुई सिगरेट निकालकर गैलरी से बाहर फेंक दी। आर यू मैड? ये क्या किया तुमने? वो गुस्से से बेकाबू होते हुए बोला। वो मुझे सिगरेट से एलर्जी
आछू! वो हैरत से ऐसे देखने लगा। तभी वो आगे बढ़ा और उसका हाथ हमें बेड पर ले आया और साथ ही पानी का गिलास उसकी सिमत बढ़ाया। खुदा की बंदी, तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी? छींकों से दोहरी होती जूफी को देखते हुए उसने कहा। आपने कभी मुझे मौका ही नहीं दिया कुछ भी कहने का। गिलास को लबों से लगाते मासूम से अंदाज में जवाब शिकवा हाजिर था। बेख्तियार अज़ाम के चेहरे पर मुस्कुराहट दर आई। उसने उठकर रूम फ्रेशनर का बेदरेगा स्प्रे किया ताकि स्मोकिंग की नाखुशगवार खुशबू को ज़ाइल ताकि स्मोकिंग की नाखुशगवार बू ज़ाइल हो जाए। मेरे लिए इतना करने के लिए थैंक्स। उसकी हालत कदरे संभली तो उसने अज़ाम शाह को शुक्रिया कहा। तुम मेरी बीवी हो इसलिए नहीं किया, बल्कि मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता इसलिए किया। उसने फौरन ही जूफी की खामख्याली पर पानी फेरते हुए कहा। नफरत के मरहम के सिवा और कुछ नहीं है इनके पास। जूफी ने दिल में सोचा, आपकी जात जो दूसरों के लिए तकलीफ का बाइस बन रही है उसका क्या? आखिर तुम्हारा मसला क्या है? जूफी के सवाल पर उसने जिद होते हुए पूछा। मेरा मसला आप हो। सामने से जवाब हाजिर था। अपनी भोली सूरत और अच्छी सीरत का जादू तुम अपना अम्मा जेजल और दानिया पर ही चला सकती हो। मुझ पर इनका असर नहीं होना। मैं अच्छे से जानता हूँ कि जल्द या बादेर तुमने ये घर छोड़कर जाना ही है। अज़ाम ने गुस्सीले तेवर से उसकी जानिब देखते हुए कहा। कोई भी मर्द औरत को समझ ही नहीं सकता। आप क्यों भूल जाते हैं? दुनिया में कोई भी चीज़ एक जैसी नहीं, ना उसकी बनावट ना खसलत। हर कोई एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो फिर आप कैसे एक किताब को पढ़कर हर किताब का मुआवजा उसी पढ़ी हुई किताब से कर सकते हैं? प्लीज बस कर दीजिए। मैं तंग आ चुकी हूँ आपके इस फजूल रवैये से, आपके बेवजह गुस्से से, आपके जारहाना तेवर से। शादी करके महान बन गए आप, तमाशाई बने। मुझे पल पल अजियत क्यों देते हैं आप? क्या कसूर है मेरा? क्यों बिना किसी जुर्म के मुझे सजा देते हैं? वो अज़ाम की शर्ट का कॉलर पकड़े फूट फूट कर रो दी। तुम तंग आ चुकी हो ना? डोंट वरी, मैं तुम्हें बहुत जल्द आज़ाद कर दूंगा। इससे पहले कि तुम फरार हो मैं खुद तुम्हें फरार कर दूंगा। बस थोड़ा इंतजार और। सफाकी से कहता वो रूम से निकल गया। वक्त निहायत सुबक रफ्तारी से गुजर रहा था। उसे लगता जैसे किसी ने वक्त की तनाबें खींच रखी हों। उसकी अज़दवाजी जिंदगी को 2 माह का अरसा होने को आया था। अम्मा जेजल बहुत बार अज़ाम से जूफी को कराची ले जाने और घुमाने फिराने का कह कह कर थक चुकी थीं, मगर उसकी ना हाँ में ना बदली थी। दिन तो घर के कामों में मसरूफ, यहाँ फिर अम्मा जेजल से सबक आमोज बातें सीखने और दानिया के साथ गपशप लगाने में गुजर जाता, मगर रात तो लगता उसके कमरे में आकर ठहर सी गई हो। उसके साथ जिंदगी रवां नदी की मानिंद गुजर रही थी। असल में जहाँ तवक्कुआत ही ना हो तो जिंदगी यूं ही बेमकसद गुजरती है। शादी के इन 2 माह बाद भी उनके बीच रवायती मियाँ बीवी वाला रिश्ता ना था। हाँ, अलबत्ता वो अपने हक जरूर वसूल करता था। उनके बीच तकल्लुफ की दीवार अभी तक नहीं गिरी थी। तभी रात उसे पता ही ना चला कि अज़ाम ना सिर्फ लेट आया था, बल्कि उसका छोटा सा एक्सीडेंट भी हो गया था। तभी सुबह होने तक उसे अच्छा खासा तेज बुखार हो चुका था। डॉक्टर अभी उसे चेक करके और दवाई देकर गया था। वो उसके लिए यखनी बना रही थी। तभी अम्मा जेजल किचन के पास चली आईं। व्हील चेयर की वजह से वो ऊपर रूम में नहीं जा सकी थी, मगर दानिया सुबह से ही ऊपर अपने भाई के पास थी। कंवार, ये सब छोड़, ये शब्बो देख लेगी। तू मेरे पुत्र के पास जा। पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे पुत्र को। अम्मा जेजल की आवाज में वाज़ेह घबराहट थी। शब्बो, ये बाउल में सूप डालो। शब्बो को हदायत देकर वो पंजों के बल अम्मा जेजल के पास बैठी। अम्मा, आप परेशान ना हो, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। आप बस दुआ करें, मैं जाती हूँ उनके पास। जूफी ने उन्हें तसल्ली दी। हाँ पुत्र, तू जा, जरा देख, उसे किसी भी चीज की जरूरत हो सकती है। उसकी तो रात से तबीयत ठीक नहीं थी, मगर तूने भी हमें नहीं बताया। बता देती तो रात ही कोई दवा दारू कर लेते। अम्मा जेजल की बात पर उसके ऊपर घड़ों पानी पड़ गया। वो उनको दिलासा देते हुए सूप लिए ऊपर चली आई। देखे ना भरजाई, अदा को पता नहीं क्या हो गया, कुछ बात भी नहीं कर रहे। दानिया की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। तुम परेशान मत हो, डॉक्टर ने कहा है ना शाम तक ठीक हो जाएंगे। ये बुखार और दवाई वगैरह भी तो दी है ना। तुम फिक्रमंद ना हो। जाओ तुम भी कुछ खा लो, मैं हूं ना इनके पास। दानिया को दिलासा देते हुए उसे हिदायत भी दी। दानिया के जाने के बाद वो बेड की तरफ आई, जहां अज़ाम शाह पर नीम बेहोशी तारी थी। सर और हाथों पर लगी चोटों पर डॉक्टर ने ड्रेसिंग कर दी थी। उसका दिल अज़ाम की सेहतयाबी की दुआएं मांगने लगा। सुर्ख और सफ़ेद रंगत, पेशानी पर बिखरे बाल, गहरे अबरू, ऊपर को उठी हुई पलकें, घनी मूंछों तले दबे अनाबी होंठ जो इस वक्त जर्द थे। वो मुंह बोलता मर्दानगी का सबूत था। ये शख्स जो उसका मुकद्दर था, नसीब था। काश उसे दिल से अपनाता।
वो बेखुद सी होती बेड पर उसके बिल्कुल पास बैठ गई। इस बेसुध से लेटे शख्स पर, जो कि इसका मिजाजी खुदा भी था, टूट कर प्यार आया था। वो इसके इतने करीब होते हुए भी फासले पर था। उसने अपने लब उसकी जलती पेशानी पर रख दिए। अजाम किसी मासूम बच्चे की तरह हल्का सा किस मिसाया तो उसने अपने लब फौरन हटा दिए। मैं बहुत अकेला हूँ, मुझे मत अकेला छोड़ो प्लीज, मेरे पास रहो, मुझे मत छोड़ो। वो नीम बेहोशी में बड़बड़ा रहा था, साथ ही अपना सर दाएं बाएं पटक रहा था। जूफी घबरा सी गई। उसने अपना दायां हाथ उसके सीने पर रखकर उसे पुरस्कून करना चाहा। मैं यही हूँ, आपके पास, कोई आपको अकेला नहीं छोड़ रहा। वो झुककर आहिस्ता से बोली और हैरत अंगेज तौर पर अब वो पुरस्कून हो चुका था। वो कुछ देर तक उसे तकती रही, फिर अपना हाथ आहिस्ता से उसके सीने से हटाया। मगर इससे पहले कि वो अपना हाथ वापस लेती, अजाम ने उसका हाथ जकड़ लिया। एक पल को जूफी को लगा वो जाग रहा है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, मगर वो अब भी बेहोशी में ही था, और ये हरकत भी शायद गैर इरादी तौर पर उसने की थी। 2 दिन बाद जाकर अजाम की तबीयत बेहतर हुई थी। आज दानिया के होने वाले ससुराली उसकी शादी की तारीख फिक्स करने आ रहे थे। दानिया की निस्बत अज़ाम शाह के जिगरी दोस्त मुस्तफ़ा से तय हुई थी, जो कि हैदराबाद में रिहाइश पजीर था। जूफी सुबह से तैयारी में लगी थी। अज़ाम भी आज ज़मीनों पर नहीं गया था। वहीं अम्मा जैजल के साथ बैठा बातों में मसरूफ था, और साथ साथ वक्तन फ़वक्तन उस पर भी नजरें दौड़ा रहा था, जो घनचक्कर बनी कभी मुलाजमों के सर पर खड़ी हॉल की डस्टिंग करवा रही थी, तो कभी किचन में शबों को हदायत दे रही थी। तभी मुलाजिम के हमरा ताया जी भी वहीं आ गए। 2 मुलाजमों ने सहारा दिया हुआ था। ताया जी को आते देखकर जूफी ने अजाम से भी पहले बड़ी फुर्ती से मुलाजिम से इजी चेयर मंगवा ली, जबकि अल्फाज अजाम के मुंह में ही रह गए। छोकरी पैदा होती है ना, तभी से उसके माँ पियो उसके लिए ख्वाब देखने शुरू कर देते हैं। हर माँ पियो की ख्वाहिश होती है कि छोकरी को ऐसा घराना मिले जो इनसे बढ़कर इसे प्यार और इज्जत दे, उसका ख्याल रखे। मगर एक चीज होती है किस्मत। सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती, मगर होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। उसके बैठते ही अम्मा जैजल ने अपनी बात का आगाज किया था, मगर उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर अम्मा जैजल आज ये कैसी घुमा फिरा कर बातें कर रही हैं। उसने उलझन ज़दा नजरों से अम्मा जैजल की जानिब देखा, जहां हनूज संजीदगी तारी थी। कुंवार अजाम पुत्र पहले ऐसा न था जैसा अब है। हालात और वाकयात ने उसे ऐसा बना दिया है। मेरा भी खुशहाल खानदान था। हवेली में खुशी के सुर बजते थे। मैंने और शाह अजाम के दादा ने खादिम अली बख्श के लिए गांव ही की जरीना को चुना था, मगर शादी के 2 सालों तक भी इन दोनों की आपस में ना बनी। हालांकि 1 साल का नियाज शाह भी उनकी गोद में आ चुका था, पर उनके झगड़े इतने बड़े के बाद तलाक तक आ पहुंची। तब से नियाज शाह को हम सब ने बहुत लाड से पाला। हवेली का बड़ा पुत्र था, इसीलिए अब सबका लाडला भी था। एक भूल के बाद दूसरी भूल का हमें हौसला नहीं था। इसीलिए हुसैन अली की शादी उसकी पसंद से एक मास्टरयानी से करवाई। शक्लो सूरत की बहुत अच्छी थी, पर उसे हमसे ज्यादा जायदाद में दिलचस्पी थी। तभी एक रात वो हमारे मान, हमारी इज्जत और पगड़ी को उछालकर बहुत सी रकम लेकर फरार हो गई। यहाँ तक उसे इसके 2 मासूम बच्चे भी याद ना रहे। अजाम शाह तब 10 साल का था और दानिया 7 साल की थी। इस सुबह हमारी हवेली में क़यामत उठी थी। पूरे गांव में हमारी इज्जत की नीलामी हो चुकी थी। 10 साला अजाम इतना बच्चा ना था, उसे सब समझ थी। तब वो औरत के मामले में मोहतात हो गया, पर जो तूफान हवेली में उठा था और हवेली की इज्जत पर दाग लगा था, इसका असर तो होना था। ठीक 10 दिन बाद मेरा पुत्र मुझे छोड़कर चला गया। अजाम और दानिया दोनों बच्चे बिन माँ बाप के हो गए। मेरी हिम्मत भी टूट गई थी, पर मुझे और इसके दादा को अपने बच्चों को संभालना था। अजाम शाह का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तभी हम दोनों दादा दादी ने इसे हॉस्टल में छोड़ने का फैसला किया, और यूं हम अजाम को हॉस्टल छोड़ आए। मगर वापसी में मेरी किस्मत ने मुझे तन्हा कर दिया। हादसे में अजाम के दादा हमें छोड़ गए और मेरा निचला धड़ बेकार हो गया। जख्म बहुत खाए और यूं ही वक्त बढ़ता रहा। खादिम बख्श ने ही फिर हम सबको संभाला। नियाज शाह ने भी अपने पियो के साथ बहनों को संभाल लिया। नियाज शाह 25 साल का जवान जहान मर्द बन चुका था। अजाम भी 20 साल का हो गया था और हैदराबाद की यूनिवर्सिटी में ही पढ़ रहा था। हमारी जिंदगी में ठहराव आ चुका था, मगर पिछले साल जब अजाम अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके लौटा तो एक बार फिर हमारे बंधन टूट गए। बन्नी के झगड़े में तुम्हारे अजवर चचा के हाथ से गलती से नियाज शाह को घाव लग गया, जिसने हम सबसे हमारा लाडला पुत्र छीन लिया। अम्मा जैजल सांस लेने को रुकी और साथ ही अपने दुपट्टे के पल्लू से बहने वाले आंसुओं को पोंछा। घोट के इंसाफ और पंचायत का फैसला ये था कि या तो तुम्हारे चाचा अपनी सारी बन्नी दे या फिर अपनी बेटी का हाथ अजाम को। बन्नी तुम्हारे चाचा की कुल कमाई थी, इसलिए उसने अपनी बेटी देने का फैसला किया।
मगर अज़ाम शादी के लिए राजी ना था। फिर मैंने और उसके ताया ने उसे समझा बुझा कर राजी किया। जवान और इकलौते बेटे की मौत ने खादिम की कमर ही तोड़ दी थी। तब से वो चारपाई पर पड़ा है। अज़ाम नीलोफर से ब्याह रचाने गया था, मगर सोने साईं को कुछ और ही मंजूर था, और यूं तुम हमारी हवेली में आई। बचपन से वो जिस तरह के हालात देखता आ रहा है, उसको ऐसा बना दिया है। पर मेरा पुत्र दिल का बहुत सोना है। ज़ूफ़ी चुपचाप सर झुकाए सुनी जा रही थी। बात के इख्तिताम पर उसने अपना सर उठाया तो उदासी और दुख की परछाई अम्मा जैजल के चेहरे पर वाज़ेह थी। कंवार, शादीशुदा जिंदगी में मर्स और जाल मियाँ बीवी को कहते हैं सिंधी में। मर्स और जाल के बीच बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, पर हाथ पैर छोड़कर बैठने से अच्छा है उसे प्यार मोहब्बत से संभाला और समझाया जाए। मर्स अगर किसी बात पर कावज गुस्से को कहते हैं सिंधी में। मर्द अगर किसी बात में कावज में हो या कोई नाराजगी हो तो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाती है। जाल का ही काम है कि अपने मर्ज को अपने प्यार और भरोसे की चादर में छुपाए रखे। देख कंवार पुत्र, घर तो एक जवाल ही बनाती है। मर्ज तो सिर्फ ईंट गाड़े की मदद से मकान बनाता है। इस मकान को अपनी मोहब्बत से घर सिर्फ जाल ही बनाती है। इस हवेली में 2 शादियां हुई और दोनों ही बर्बाद, और इसकी जिम्मेदार औरत ही थी। तभी शाह भी अपनी इस शादीशुदा जिंदगी से गुस्से में है। मेरी धी रानी, तू बहुत समझदार है। मुझे पता है तू मेरे पुत्र और अपने मर्ज को संभाल लेगी। पुत्र, उसे गलतफहमी है और इस गलतफहमी को तू दूर कर देगी ना? अम्मा जैजल ने उसे गले लगाते हुए इकरार चाहा। अम्मा, आप फिक्र ना करें, अब मैं इन्हें बताऊंगी कि हर औरत एक जैसी नहीं होती। बेइख्तियार ही उसके मुंह से निकला, जिस पर अम्मा जैजल ने उसकी पेशानी पर बोसा लिया। रब सोना करे तू सदा शाल रहे और इस हवेली को शान बनाए रखे। रब सोना हमेशा तुझे आबाद रखे। ढेर सारी दुआएं देते हुए अम्मा जैजल ने उसकी बलाएं ले डाली। दोपहर तक दानिया की शाह के साथ वापसी हो चुकी थी। अरे वाह, आज तो बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है। दानिया की बात पर डाइनिंग टेबल पर मौजूद ज़ूफ़ी और अम्मा जैजल के चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। कंवार, तेरे ताया को भेज दिया खाना? अम्मा जैजल ने पूछा, क्योंकि ताया का खाना उनके कमरे में ही जाता था। रीढ़ की हड्डी में पेन की वजह से वो ज्यादा चलना फिरना नहीं करते थे। जी अम्मा, मुख्तसर जवाब देकर वो अभी अम्मा जज्जल के बराबर में रखी चेयर पर बैठ गई। चाइनीज चावल, चिकन टिक्का, शामी कबाब, अचार गोश्त, रशियन सलाद और चपाती से सजा टेबल देखकर अज़ाम शाह के मुंह में पानी आ गया था। जीती रहो, शाल रहो, सदाएं। ताया जी ने दुआएं दी। इन तीनों को बातों में मगन देखकर वो किचन की तरफ चली आई। भरजाई, भरजाई। तभी दानिया उसे पुकारती हुई किचन में चली आई। उसके हाथ में 2 सूट थे। भरजाई, इसमें से कौन सा ड्रेस पहनूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। उसने दोनों सूट, जिसमें से एक सी ग्रीन कलर की फ्रॉक भी थी जिस पर सफेद रंग के धागों का काम हुआ था, जबकि दूसरा मेहरून रंग का सूट था। अरे चंदा, कोई भी पहन ले, तू सोहनी ही लगेगी पुत्र। अम्मा जैजल ने वहीं से हाँक लगाई। नहीं ना अम्मी, भरजाई को ज्यादा आइडिया होगा, मैं ज्यादा कंफ्यूज हूँ। प्लीज भरजाई, आप ही हेल्प करें ना। अच्छा, तुम रूम में चलो, फ्रेश वगैरह हो, तब तक मैं थोड़ा सा काम निपटा कर आती हूँ। डोंट वरी, ड्रेस भी सिलेक्ट करवा दूंगी और अच्छे से तैयार भी कर दूंगी। ज़ूफ़ी उसके गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए बोली, कंवार, तुम्हें तैयार नहीं होना? ताया जी ने आम से हुलिये में मौजूद ज़ूफ़ी से इस्तफसार किया। कंवार पुत्र, जा, अब तू भी तैयार हो जा, दोपहर होने को आई है, शाम तक वो लोग भी आ जाएंगे। घर की इकलौती नूंह है, तुझे भी तैयार होना चाहिए, इसीलिए जा पुत्र, अच्छे से श्रृंगार करना। अम्मा जैजल ने भी उसे हदायत दी और अच्छे पर जोर देते हुए तैयार होने का हुक्म भी। ज़ूफ़ी ने नजर सामने दौड़ाई, वो भी उसे देख रहा था। नजरों से नजरों का तसादुम हुआ था। जी अम्मा, जैसे आपका हुक्म, बस जरा सा काम बाकी है, वो खत्म कर लूं, फिर दानी को तैयार करके खुद भी तैयार हो जाऊंगी। कुछ देर बाद वो अपने सारे काम निपटा कर दानी के कमरे में चली आई और फिर सी ग्रीन फ्रॉक उसके लिए सिलेक्ट करते हुए वो उसे हल्का फुल्का तैयार करने में मसरूफ हो गई। लो जी, हो गई मेरी इकलौती नंदरानी तैयार। अच्छा, अब तुम आरसी आईने के सामने बैठकर अपनी सजदे देखो, जब तक मैं मिनटों में तैयार होकर आई। 2 घंटे लगाकर वो अब फारिग हुई थी। दानी अब मुकम्मल तैयार थी, मगर बहुत ज्यादा नर्वस थी। ओफो, नर्वस मत हो, मैं यूं गई और यूं आई, बस ड्रेस में ही चेंज करना है। फ्रेश होकर ड्रेस बदल कर भी आई, वो कहती हुई जाने के लिए मुड़ी। तभी दानिया ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। भरजाई, मैंने अब तक आपको पूरी सज धज के साथ तैयार नहीं देखा। आज इतना खास दिन है, प्लीज आज पूरे दिल से तैयार हो जाएं। दानी की इल्तिजा पर वो मुस्कुरा दी।
अरे ले पगली, मैं तैयार होती तो हूँ। नहीं भरजाई, वो सादगी वाली तैयारी नहीं। आज इतना खुशी का मौका है, आज काफी लोग भी होंगे, फिर अम्मा ने भी आपसे कहा था, तो प्लीज ना आज मेरी बात मान लें भरजाई। दानी ने जूफी के दोनों हाथों को पकड़ते हुए इल्तिजा की। अच्छा जनाब, मान लेते हैं आपकी बात, वैसे भी आप तो मेहमान हैं अब। जूफी ने उसे छेड़ा तो वो शर्मा गई, जबकि जूफी हंसते हुए दानी के रूम से निकली, मगर बाहर ही उसका टकराव अजाम शाह से हो गया। बहुत खुश हैं आप, और इस खुशी में शायद नजर आना भी बंद हो गया है। वैसे खुशी का दिन मेरी बहन और हम सब के लिए है, मगर खुश आप हैं। हाँ, क्योंकि आपकी बहन मेरी नंद है। अजाम के तंज का जवाब देके वो रुके बिना अपने रूम में आ गई। कुछ ही देर में वो भी उसके पीछे रूम में चला आया। इतना भी खुश मत हो, बनावटी लोगों से मुझे सख्त नफरत है, और ये जो तुम बनावटी और दिखावे के रिश्ते बना रही हो और निभा रही हो, मैं अच्छे से जानता हूँ। तुमने इन रिश्तों इस घर को छोड़कर चले जाना है। अलमारी से अपने कपड़े निकालकर बेड पर उछालते हुए उसने जूफी से कहा, इतनी नफरत और बदगुमानी भी अच्छी नहीं होती। इंसान को इतना भी गलत फहमियों के अंबार तले दबकर नहीं रहना चाहिए कि उसका वजूद ही गलत फहमी के ढेर में कहीं गुम हो जाए। जूफी उसके कपड़े उठाए उसे जवाब देते हुए इसलिए स्टैंड पर आ गई। मानना पड़ेगा, बातें अच्छी कर लेती हो, पर मुझ पर असर नहीं होना। वैसे इतने टाइम में तुमने इस घर में काफी जगह बना ली है, सवाए मेरे दिल के। वो कहता हुआ वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। कोई और वक्त होता तो यही बातें जूफी को रुलाती और तकलीफ देती, मगर अब जबकि वो जान ही गई थी कि इन कड़वी कसीली बातों के पीछे एक डर है शाह के दिल में, वो माजी से खौफजदा है। तब से उसने अपने दिल को मजबूत कर लिया था, क्योंकि अब सवाल सिर्फ एक बीवी की वफा का ही नहीं बल्कि औरत जात पर एतबार का भी था। जब तक वो नहाकर निकला तब तक वो न सिर्फ उसके कपड़े प्रेस कर चुकी थी, बल्कि उसने अपने लिए भी ड्रेस सिलेक्ट कर लिया था। जब तक वो तैयार होता रहा तब तक वो रूम में इधर उधर कामों में लगी रही, क्योंकि वो उसके सामने तैयार नहीं होना चाहती थी। मेहमान आ चुके थे, मगर उसका कुछ अता पता नहीं था। हत्ता कि दानिया भी हॉल में मौजूद थी। तभी वो अम्मा जेजल के इशारे पर उसे बुलाने के लिए गुस्से में भरा ऊपर चला आया, पर दरवाजे पर ही वो भूत सा रह गया। वो वाकई इतनी खूबसूरत सी थी या आज लग रही थी। लाल रंग की सिल्की साड़ी जिस पर सफेद सितारों का काम चमक रहा था, उसके बदन पर सजी हुई थी। कानों में लंबे आवेजे, हाथों में शीशे की खनकती चूड़ियां, भीनी भीनी परफ्यूम की महक जो कि पूरे कमरे में फैली हुई थी, अजाम के हवासों पर छाने लगी। पल में उसका गुस्सा उड़न छू हो गया। उसकी दरवाजे की सिमत पुश थी। वो अपनी गर्दन झुकाए लंबे स्याह बालों की आबशार को एक शोल्डर पर लिए, दोनों हाथों को पीछे किए पर्ल का खूबसूरत चमकता हुआ सेट पहनने की कोशिश कर रही थी। उसके कदम अंदर की जानिब बढ़ गए। वो खामोशी से उसके पीछे आ खड़ा हुआ और सेट का लॉक बंद करने लगा। घबरा कर जूफी ने पीछे देखा, जहां वो खामोशी से उसका लॉक बंद कर चुका था। आईने में दोनों का अक्स नुमाया था। अजाम व्हाइट शलवार और मेहरून कुर्ते में डैशिंग लग रहा था। जूफी के आसपास पॉइजन की खुशबू फैलने लगी। जूफी तकरीबन तैयार हो चुकी थी और आज बिलाशुबा किसी हसीन मूर्ति की मानिंद लग रही थी। उसने पहली बार जूफी को सजे सजाए रूप में गौर से देखा था। सजा संवरा दिलकश सरापा जो पूरे जमाने का हुस्न अपने अंदर समेटे मौजूद था। काजल से भरी आंखें भी ऐसी जिनमें हज़्नो मिलाल और अफसुर्दगी का सहर अंगेज तासुर भी था, और मुकाबिल को चित कर देने वाली मासूमियत भी। ऐसे भोले और उभरते हुए नकूश जो देखने वाले का दिल मोह कर ले जाएं। दराज पलकों के सिरे पर मोती जैसे आंसू टंगे थे जो उसके हुस्न पर जच रहे थे। उसने हमेशा ही जूफी को सादा और आम से हुलिये में देखा था, और आज यूं बनाओ सिंगार पर तैयारी, हल्का फुल्का मेकअप उसकी खूबसूरती में चार चांद लगा गया था। कितने ही पल इन दोनों के बीच खामोशी से सिलक गए थे। तभी अम्मा हाजरा की आमद पर वो जरा फासले पर हुआ। शाह पुत्र और कंवार, अम्मा जेजल तुम दोनों का नीचे इंतजार कर रही हैं। पैगाम देकर वो चली गई। आज उसे इतराफ करना ही पड़ा था कि वो वाकई सराहे और चाहे जाने के काबिल है। जब भी वो भी जाने को मुड़ा, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। उसके पास से गुजरते हुए अजाम ने सरगोशी की, मगर जाने से पहले वो पीछे मुड़कर उसके चेहरे पर बिखरी सुर्खी देखना ना भूला था। नीचे सब कुछ खुशउस्लूबी से तय पा गया था। 3 माह बाद की तारीख तय हुई थी। आज सबकी आंखों में अपने लिए सताइश और तारीफ देखकर उसे अपना आप काफी बदला हुआ लग रहा था, मगर आज वो महसूस कर रही थी कि उसकी तबीयत कुछ भारी सी और डल सी हो रही थी। ड्राइंग रूम में भी मेहमानों के सामने उसके कदम डगमगाए थे।
کیا بات ہے اماں، کوئی خوشخبری تو نہیں کنوار کی طرف سے؟ دانی کی سانس نے ہنستے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ شرما سی گئی، جبکہ عزام کے چہرے پر مسکراہٹ در آئی۔ مہمانوں کو رخصت کر کے اس کا ارادہ تھا کہ وہ جلدی اپنے روم میں جائے، کیونکہ آج اسے بہت تھکن بھی محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی وہ شبو اور باقی نوکروں کو کچن سے بیٹھنے اور دیگر ہدایات دے کر اماں جیجل کو ان کی دوائیاں دینے ان کے روم میں چلی آئی۔ کنوار پتر، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ آج ماشاءاللہ سونی بھی اتنی لگ رہی تھی، کہیں نظر ہی نہ لگ گئی ہو۔ اس کی چال میں واضح لڑکھڑاہٹ تھی۔ اماں پتہ نہیں، بہت عجیب سی طبیعت ہو رہی ہے، تھکن بھی کافی ہو رہی ہے۔ اس نے اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ پتر، تھکن تو ہونی ہے، صبح سے کاموں میں لگی ہوئی تھی، جا پتر تھوڑا آرام کر لے۔ اماں جیجل نے سورت وغیرہ پڑھ کر اس پر دم کرتے ہوئے اسے آرام کا مشورہ دیا تو وہ بھی جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ ویسے پتر، نذیرہ نے جو کہا اس پر بھی غور کر لینا، عورت کا گھر اور ذات اولاد سے ہی پورا ہوتا ہے، اور اب تو اس سونے گھر میں بار کی کلکاریاں گونجنی چاہیے۔ بار کا مطلب بچے ہے۔ اور تمہیں پتا ہے کنوار، عزام شاہ کو بچوں سے بہت لگاؤ ہے۔ دانی کو بچپن میں اپنے کندھے پر اٹھائے گھومتا تھا اور کبھی کبھی پاڑی کے کسی بچے کو اٹھا لاتا تھا۔ پاڑی کا مطلب پڑوسی۔ اپنا بچہ ہوگا تو خوشی سے میرا پتر پاگل نہ ہو جائے۔ اماں جیجل آج کافی خوشگوار موڈ میں تھیں، اوپر سے ان کی باتیں۔ اماں ابھی تو آپ سو جائیں، دوائی لی ہے نا تو آرام کریں۔ زوفی نے انہیں لٹا کر وہاں سے فرار ہونے میں ہی عافیت سمجھی۔ اپنے روم کی لائٹ آف دیکھ کر اسے لگا کہ عزام سو چکا ہے۔ تبھی وہ ڈریس چینج کی گھر سے دبے پاؤں واش روم کی جانب بڑھی، جب ہی عزام کی آواز نے اسے روک لیا۔ سنو، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، ذرا دبا دو۔ ایک ہاتھ کو سر پر رکھے پیشانی کو سہلاتے ہوئے اس نے پکارا۔ اس کے واش روم کی جانب بڑھتے قدم رک گئے۔ خاموشی سے پلٹی اور بیڈ پر اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھ دیا، مگر یک لخت عزام نے اس کا ہاتھ تھام کر زور سے جھٹکا دیا۔ اگلے ہی پل اس کی ساڑی کا پلو ڈھلک سا گیا، وہ عزام کے سینے پر گر سی گئی۔ یہ کیا حرکت ہے؟ زوفی کے لہجے میں خفگی در آئی۔ اور آپ جو سارے ہتھیاروں سے لیس ہمارے صبر کا پیمانہ لے رہی تھی، وہ کیا حرکت ہے پھر؟ عزام نے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے گمبھیر لہجے میں اس کی تیاری پر چوٹ کی۔ مجھے ڈریس چینج کرنا ہے۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر عزام کی باہوں کا حلقہ تنگ سے تنگ ہوتا چلا گیا۔ تمہارے اسی حسن نے تو مجھے دیوانہ کیا ہے، اور تم ڈریس چینج کرنے کی بات کرتی ہو۔ آج تم اتنی پیاری لگ رہی ہو کہ دل چاہ رہا ہے کہ تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس، اپنے دل میں، اپنی آنکھوں میں رکھ لوں۔ نہ جانے کیوں آج جذبات مچل رہے ہیں کہ تم ہمیشہ یوں ہی میری باہوں کے گھیرے میں مقید رہو۔ مدہوش سی آواز اسے اپنے بہت قریب محسوس ہوئی۔ آج زوفی کو اس کی قربت بری نہیں لگ رہی تھی۔ اگلے ہی پل عزام کا ہاتھ اس کی زلفوں سے پھسلتا ہوا اس کی گردن پر آ رکا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اس کی سانسیں بہت تیزی سے چل رہی تھیں۔ اپنی گردن پر اس کے گرم ہونٹوں کا لمس اسے بے قابو سا کر گیا تھا۔ تپتی ہوئی سانسوں کی گرماہٹ اسے پگھلانے لگی تھی۔ آج سب کچھ مختلف تھا، فضا میں بھی محبت کا نشہ چھلک رہا تھا، کیونکہ محبت کی مہربان دیوی نے زوفی کو اپنی آغوش میں بھر لیا تھا۔ اس کے پاپا کی اچانک طبیعت بگڑی تھی تو اس کا دل بہت اداس تھا۔ وہ ان 2.5 ماہ میں ایک بار بھی کراچی نہیں گئی تھی، تبھی اس نے ضد باندھ لی۔ پاپا میں تو اس کی جان تھی۔ زوفی کی اتری صورت دیکھ کر اماں جیجل نے فوراً سے بیشتر اسے کراچی بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا۔ عزام شاہ ہی اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ پاپا کی طبیعت دوسرے ہی دن کافی بہتر ہو چکی تھی، بس بی پی ہائی ہو گیا تھا، مگر اب کنٹرول میں تھا۔ پاپا کی طبیعت سنبھلتے دیکھ کر وہ پھر اتنے ٹائم بعد اپنے گھر آ کر وہ بہت خوش تھی۔ ممی کے لاکھ پوچھنے پر بھی اپنے اور شاہ کے تعلقات وہ انہیں نہ بتا پائی، کیونکہ اسے اب یقین ہو چکا تھا کہ بہت جلد وہ اپنی محبت سے اس کا دل جیت لے گی۔ گزرے دنوں میں اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ ہر مرد کی طرح 16 سنگھار عزام کی کمزوری ہے۔ مسٹر عزام شاہ، اب یہی ہتھیار میری طاقت بنے گا اور آپ کی کمزوری، خود سے عہد کرتے ہوئے زوفی نے سوچا، جبکہ دوسری جانب عزام کی بھی حالت کچھ مختلف نہ تھی۔ اس کی بڑھتی بے چینی، بے قراری اماں جیجل اور دانیہ سے چھپی نہیں تھی۔ آتے جاتے دانیہ اسے زوفی کا نام لے کر چھیڑتی تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی۔ زوفی کو گئے ابھی صرف 3 دن ہی ہوئے تھے اور اس کے بغیر یہ گھر کاٹ کھانے کو دھوڑ رہا تھا۔ اسے اعتراف کرنا ہی پڑا کہ زوفی نے واقعی اس مکان کو گھر بنایا تھا۔ گھر آتے ہی اس کے احساسات عجیب سے ہو جاتے۔ بیڈ روم کی تنہائی میں ہلکی ہلکی سی آہٹیں اور سوئنگل کی مدھر سی آواز اسے بے چین کرنے لگتی۔ اس کے قدموں کی چاپ، چوڑیوں کی کھنک، کپڑوں کی سرسراہٹیں، اس کے سامنے خود کو جان بوجھ کر مصروف ظاہر کرنے کی ادا، بہت کچھ اسے یاد آنے لگتا۔
वो जमीनों से वापस आया तो बहुत थकन महसूस कर रहा था, इसीलिए अपने रूम में जाने की बजाय वो नीचे ही अम्मा जेजल के कमरे में चला आया, जहाँ दानिया और अम्मा जेजल बैठी बातों में मगन थीं। वो भी सलाम करके वहीं उनके पास बैठ गया। आ गया पुत्र, आजकल तो बड़ा गुमसुम रहने लगा है। क्या बात है पुत्र? अम्मा जेजल ने अजाम के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। ओहो अम्मा, भरजाई के जाने से अदा यूं गुमसुम तो हो ही जाएंगे ना, दानी ने शरारत से कहा। छोटी, अजान ने उसके सर पर चपत रसीद की। अच्छा चल तू जा, अदा के लिए गरम गरम चाय और कुछ खाने को भी ले आ। क्या अम्मा, इतने नौकर हैं और आप मुझे कह रही हैं? वो मुंह बसोरते हुए बोली। अगले घर भी तो जाना है, कुछ सीख ले। अपनी भरजाई को ही देख, 2.5 महीने हुए हैं पर हर जिम्मेदारी संभाल ली है। अम्मा जेजल के लहजे में उसके लिए प्यार ही प्यार था। अदा, आप ही कुछ बोल लें। मुसलसल बोती अम्मा अम्मा को कंट्रोल करना बस अजाम शाह के ही बस में था। तभी दानी ने अजाम को मदद के लिए पुकारा। अब मैं क्या कहूँ, अम्मा ठीक ही तो कह रही हैं। हाय अदा, आप भी ना बस अम्मा ही की तो साइड लेंगे, आखिर भरजाई की तारीफें जो हो रही हैं। उसने अजाम को चिढ़ाया। अगले पल, उससे पहले कि वो एक बार फिर चपत लगाता, वो रूम से बाहर भाग निकली थी। पुत्र, एक गल डस, तू खुश तो है ना? वो जो आंखें बंद किए उनकी गोद में लेटा था, आंखें वाह किए उन्हें हैरानी से देखने लगा। मेरा मतलब है पुत्र, सब कुशल मंगल है ना तुम मियाँ और बीवी के बीच? जिस तरह तुम दोनों की शादी हुई है, ऐसे में एक दूसरे को समझने में वक्त तो लगता है, मगर बीवी और मियाँ गाड़ी के 2 पहिए हैं, किसी एक पर भी हम वजन नहीं डाल सके। इस तरह तुम दोनों में भी गलती भी किसी की नहीं, बस हालात ही ऐसे थे कि तुम लोग चाहकर भी एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे। मगर देख पुत्र, गलतफहमी की दरार जब दिल में पड़ने लगे तो फौरन से पहले अपनी आंखों पर से बेखौफी का पर्दा हटाकर अक्लमंदी की ऐनक लगाकर इस दरार को एतमाद और भरोसे से भर देना चाहिए, वरना दूसरी सूरत में वो दरार रिश्तों की दीवार तोड़ने में मिनट लगाती है। वो अम्मा जेजल की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था। वाकई आजकल उसके साथ ऐसा ही कुछ हो रहा था। अम्मा, मैं क्या करूं? दिल चाहकर भी ये एतराफ और फैसला मानने को तैयार नहीं होता कि वो मेरी वफादार रहेगी, हमारी इज्जत की लाज रखेगी। जब एक औरत खुद तलाक मांग सकती है, जब एक औरत 12 साल बाद भी अपना बसा बसाया घर छोड़कर जा सकती है, तो फिर ये तो आजकल की लड़की है। मैं उसे खोने से डरता भी हूँ, मगर रोकने का पाबंद भी नहीं। वो उठकर बैठ गया और अम्मा जेजल के दोनों हाथों को थामे अपना हाले दिल उन्हें बयान कर दिया। पुत्र, मैं जानती हूँ तू उसे चाहने लगा है, चाहे तू एतराफ कर या ना कर, पर मुझे खबर है और वो भी तुझे पसंद करती है पुत्र। उसकी आंखें, उसका खानदान, शर्मो इज्जत सब इस बात की गवाह हैं कि वो छोड़कर जाने वालों में से नहीं। देख पुत्र, बात सुन, दुनिया में हर तरह के लोग मौजूद हैं, किसी एक गलती की सजा हम दूसरे को नहीं दे सकते, किसी न किसी पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा, और फिर दिल भले उल्टे हाथ पर हो, मगर फैसले हमेशा सीधे करता है। पुत्र, तू भी अपने दिल की ही सुन, आगे जो रब सोहने की मर्जी, वो बादशाह है, मालिक है, सब बेहतर ही फैसला करेगा। अम्मा जेजल की बातों से उसे थोड़ी ढारस मिली थी। वो आजकल जिन उलझनों की डोर में उलझ रहा था, वो डोर सुलझी ना थी तो कम अज कम उसका सिरा जरूर हाथ आ चुका था। उसे अब उम्मीद होने लगी थी कि बहुत जल्द वो अपनी कश्मकश का हल निकाल लेगा। जूफी को आए अभी 1 हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ था, मगर उसने जाने की तैयारी पकड़ ली थी। मम्मी पापा भी थोड़ा हैरान थे तो खुश भी कि वो ससुराल में अच्छे से एडजस्ट हो गई है, जबकि दूसरी जानिब जूफी उलझन का शिकार थी। आजकल वैसे भी उस पर अजीब सी सुस्ती चढ़ी हुई थी। वो जो बहुत दिनों का सोच कर आई थी, अब 5 दिनों में ही उकताहट में मुब्तला हो गई थी। अम्मा जेजल और दानी से बातें होती थी तो उसे पता लग जाता था कि दूसरी तरफ भी हाल बुरा ही है। मम्मी पापा के रोकने के बावजूद वो ना रुकी थी। अम्मा जेजल से कहकर ड्राइवर बुलवा लिया था, क्योंकि हवेली की औरतों को अकेले सफर की इजाजत ना थी। साथ ही उसने अम्मा जेजल को मना किया था कि उसकी वापसी का घर में किसी को भी पता ना चले, क्योंकि यूं अचानक घर आकर वो सरप्राइज देना चाहती थी। उसे पता था अम्मा जेजल हैं तो पुराने जमाने की, मगर फिर भी हर बात अच्छे से समझती हैं और यकीनन सब संभाल लेंगी। और हुआ भी कुछ यूं ही। ड्राइवर चूंकि एक दिन पहले रात ही में आ चुका था, तभी वो लोग नमाज फजर पढ़कर निकले थे। चूंकि डायरेक्ट सफर था, इसीलिए वो 11 बजने तक घर पहुंच चुके थे। हमेशा की तरह अजाम शाह जमीनों की तरफ जा चुका था। अम्मा जेजल लॉन में ही उसकी मुंतजिर थीं, जबकि दानिया यूं अचानक जूफी की आमद पर हैरान भी थी और खुश भी। वाह भरजाई, क्या जबरदस्त सरप्राइज दिया है, मैं अभी अदा को फोन करती हूँ। दानिया उससे गले मिलकर अंदर की जानब बढ़ने लगी, तभी अम्मा जेजल ने उसे रोका। नहीं पुत्र, फोन न कर, कमार ने रात ही तेरे अदा को बताने का मना कर दिया था।
तभी ड्राइवर को मैंने भी चुपके से भेजा ताकि तेरे अदा को पता ना लगे। हाँ अम्मा, आप भी मिली हुई थी भरजाई के प्लान में, पर मुझे नहीं बताया, दानी ने मुंह फुलाते हुए कहा। अगर तुम्हें पता होता भी तो तुम्हारे चेहरे पे खुशी और हैरानगी के रंग कैसे देखने को मिलते। जूफी उसके फूले हुए नाक को पकड़ते हुए बोली। तभी दानिया के सेल पर बीप बजी। उई माँ, अदा का फोन आया है। वो मोबाइल पकड़े स्क्रीन पर जगमगाते नंबर को देखने लगी। ला इधर दे, मैं ही बात करती हूँ। अम्मा जेजल ने मोबाइल उसके हाथ से ले लिया। 10 मिनट की बात करने के बाद वो कॉल कट करके इन दोनों की जानिब मुतवज्जा हुई। शाह पुत्र को नई जमीन के सिलसिले में हैदराबाद जाना पड़ रहा है, तो शायद काम निपटाकर वो कल रात तक वापिस आएगा। लो भरजाई, आपका सरप्राइज तो साइड में ही रह गया, उल्टा अदा ने ही सरप्राइज दे दिया। दानिया की बात पर वो मुस्कुरा दी। कवार पुत्र, जा नहा धो ले, सफर से आई है। फिर मैं शब्बों से जब तक खाना तैयार करवाती हूँ, फिर सब मिलकर खाएंगे। अम्मा जेजल ने प्यार से कहा। नहीं अम्मा, अभी भूख नहीं, शाम को ही खा लूंगी, बस थकन हो रही है तो मैं नहाकर थोड़ा आराम करूंगी। वो अंदर जाने के लिए बढ़ी, तभी कुछ याद आने पर वो पलटी। ड्राइवर जो कि उसका सामान अंदर पहुंचा चुका था, उससे कहकर ब्राउन कलर का हैंडबैग बाहर मंगवाया। अम्मा, ये कुछ शॉपिंग मैंने की थी और साथ ही मम्मी पापा ने आपके लिए कुछ सामान भिजवाया है। इससे पहले अम्मा जेजल उनको तोहफे दिए जो कि इसने पहले अम्मा जेजल को उनके तोहफे दिए जो कि गरम ऊनी शॉल, चिकन ब्रेजा के 2 सूटों, नरम सी चप्पल और चादर पर मुश्तमिल थे। फिर वो दानिया की तरफ पलटी। रेडीमेड 2 फ्राक, लॉन का प्रिंटेड सूट, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के 2 नफीस से सेट, खूबसूरत सी चूड़ियाँ और नाजुक सी सैंडल, ये तुम्हारे लिए। उसने दानी की तरफ शापर बढ़ाया। भरजाई थैंक्स। उसकी आंखें मोहब्बतों के पानी से भर आईं। उसने आगे बढ़कर अपनी इकलौती नंद को गले से लगा लिया। वैसे आप अदा के लिए क्या लाई हैं? दानी ने शरारत से पूछा। उनके लिए भी कुछ है, दिल ही दिल में जवाब देते हुए उसके चेहरे पर कोसों खजा के रंग बिखर गए, जिसे अम्मा जेजल ने बहुत गौर से देखा। अरे पगली, ये खुद जो आ गई है, इससे बढ़कर क्या होगा? अम्मा जेजल ने जूफी के दिल की बात को अपने अल्फाजों में कहा तो वो भी मुस्कुराते हुए अपने रूम की जानिब बढ़ गई। रूम में सब कुछ वैसा ही था, मगर साफ सुथरा। ड्रेसिंग टेबल पर उसकी चूड़ियां तरतीब से बॉक्स में रखी गई थीं। लगता है मुझे मिस करते हुए मेरी चीजों से दिल बहलाया है, जूफी ने सोचा। वो अपना सूटकेस खोले अपने कपड़े वगैरह रखने लगी। तभी उसकी नजर सीडी प्लेयर पर पड़ी तो उसने आगे बढ़कर प्ले का बटन पुश कर दिया। आसमां तेरा मेरा हुआ, ख्वाब की तरह धुआं धुआं। आसमां तेरा मेरा हुआ, सांस की तरह रुआं रुआं। अल्फाजों को सुनकर वो सुनसी हो गई। कितनी प्यारी वर्डिंग थी। न जाने कब तक वो सोती रही थी। उठकर उसने रोम के दबेज पर्दे सिरकाए। शाम के साये अब फैलने लगे थे। दिसंबर के इख्तितामी आयाम थे। हवाओं में खुनकी फैली हुई थी। ठंडी पुरलतीफ और खुनकज़दा हवाओं की लहरें उसे अपने अंदर उतरती हुई महसूस हुई थीं। वो अपने बाल समेटकर नीचे चली आई। उठ गई पुत्र, नींद हो गई पूरी? जी अम्मा, हो गई पूरी। अम्मा जेजल को सलाम करके वो जवाब देकर वहीं उनके पास सोफे पर बैठ गई, जो दानिया के दुपट्टे में सितारों की बेल टांक रही थी। देख ना पुत्र, इतना कम वक्त रह गया है और दानी की इतनी तैयारी करना बाकी है। घर की बड़ी होकर भी मैं कुछ नहीं कर सकती। अम्मा के लहजे में उदासी दर आई। अम्मा, आप क्यों परेशान होती हैं? मैं हूं ना उसकी भरजाई। इंशाल्लाह सब काम हो जाएंगे, वो भी खैरो आफियत के साथ। जूफी ने अम्मा जेजल को तसल्ली दी। हाँ पुत्र, तेरे ही होने से आसरा है। सदा जूती रह। मैं शाह पुत्र से कहूंगी तुझे शहर ले जाए साथ, ताकि तुम दोनों ही सब खरीदारी कर आओ। अम्मा जेजल की बात अभी मुकम्मल हुई ही थी, तभी दानिया भागती हुई चली आई। हाय छोरी, आराम से, खैर तो है? वो जो हाँप रही थी दुपट्टा छोड़ छाड़ अम्मा जेजल ने उसकी जानिब देखते हुए पूछा। अम्मा, वो आपकी चचाजाद बहन है ना, अम्मा सकीना, उनके शोहर का इंतकाल हो गया है। हाय हाय, ये क्या हो गया? वो तो भला चंगा था। दानी की बात सुनकर अम्मा ने 2 हथड़ अपने सीने पर मारे। 2-3 आंसू झट से बह निकले थे। शाह पुत्र, तू हैदराबाद गया है, वो भी जरूरी काम से। अब मैं तो जाने से रही, तो जाएगा कौन? अम्मा ने अपने सर को पकड़ते हुए पुरतशवीश अंदाज में कहा। अम्मा, किसी न किसी को तो जाना पड़ेगा, अब तो शाम भी हो गई। जूफी ने भी बाद में हिस्सा लिया। हाँ पुत्र, शाम तो हो गई है। अगर सुबह तक शाह पुत्र की वापसी हो गई तो वही चला जाएगा। चल दानी, तू जरा अम्मा सकीना के यहाँ फोन तो लगा दे, मैं फोन पर तो बात कर लूँ। डिनर और सारे काम वगैरह से फारिग होकर वो बहुत देर तक अम्मा की दिलजोई करती रही।
और साथ में दानी से गपशप भी। गुलफिशा आपी की कॉल आई तो वो रूम में चली आई। वहां तो आधी रात हो चुकी थी। कॉल डिस्कनेक्ट होने के काफी देर बाद भी वो रोमैसल की शरारतों पर हंसती रही। काश इस घर में भी यूं ही कोई शरारती सा बच्चा होता। यकलख्त उसके दिल में ख्वाहिश उभरी। कुदरत भी शायद इसी इंतजार में थी कि कब उसके दिल में इस मासूम सी ख्वाहिश का बीज नमू पाए और वो अपने बेकरार खजाने से वो अनमोल मोती उसे बख्शे, जिसे पाकर औरत की तकमील हो जाती है। रात अपने अंदर हजारों भेद छुपाए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। वक्फे वक्फे से उभरने वाली चौकीदार और साथ ही पहरा देते कुत्तों की आवाज के अलावा अंदर बाहर खामोशी का राज था। मौसम बदल जाने के बावजूद फिजा में खुनकी का राज था। शाम होते चलने वाली ठंडी हवा खुशगवारी के एहसास के साथ ही जाने वाले दिसंबर और आने वाली जनवरी और साले 9 की पैगंबर थी। सुबह बड़ी ओस भरी थी। हर शय गीली गीली सी थी। नमाज पढ़ने और अम्मा जेजल को सलाम करके वो बाहर लॉन में आ गई। हवा के झोंकों में छुपा भीगापन चेहरे पर महसूस हो रहा था। बड़े सारे सहन के सफेद चिकने मार्बल के फर्श पर वो चप्पल उतार कर चली आई। ठंडक उसके कदमों तले जज्ब होने लगी। यूं ही चलते चलते वो बाग की तरफ चली आई। कोने में लगे मोतियों की झुंड की खुशबू लहलहाती हवा यहाँ से वहां फैला रही थी। ये राहत भरी ठंडक उसे बेहद सुकून और राहत देने लगी थी। यकदम उसे चक्कर आए थे। वो लड़खड़ाते हुए गिरने को थी जब ही माली बाबा ने उसे देख लिया। धी रानी, और उसे सहारा देकर लॉन में रखी चेयर पर बिठा दिया। कुछ ही पल में अम्मा जेजल, दानिया, अम्मा हाजरा सब उसके इर्द गिर्द जमा थे। ज़ूफ़शा नीम बेहोशी की सी कैफियत में थी। उसका सर बुरी तरह चकरा रहा था। हर चीज उसे घूमती हुई महसूस हो रही थी। पड़ोस में जो डॉक्टरानी है, इसे बुला लाओ जल्दी। अम्मा जेजल ने हदायत दी और साथ ही ज़ूफ़शा के हाथ पांव से हिलाने लगी। थोड़ी देर में डॉक्टर खुर्शीद आ गई थी। कुछ मिनटों बाद ही आने वाली खुशखबरी ने हवेली को अपनी लपेट में ले लिया। हवेली के मकीनों से लेकर नौकर तक सब बहुत खुश थे। अब वो मुकम्मल होश में थी, शर्माई शर्माई सी। अम्मा जेजल तो उसकी बुलाएं लेते ना थकती थीं। सदके भी दिए जा रहे थे। भरजाई, आपने मुझे बुआ बना दिया। अब यह खबर जल्दी से अदा को सुनाती हूँ। दानिया खुशी से उछल ही पड़ी। खुशी संभाले ना संभलती थी तभी वो नंबर डायल करने लगी। दानी, अभी नहीं, फोन ना करो। वो मैं समझ गई, अदा को भी सरप्राइज देना है, वो भी खुद ही। दानिया ज़ूफ़ी की अधूरी बात का मतलब समझते हुए बोली तो मुस्कुराकर सर इस बात में हिला गई। अज़ाम शाह की वापसी अब तक नहीं हुई थी। ना चाहते हुए भी अम्मा जेजल को ज़ूफ़ी ने जाने के लिए तैयार किया था। हालांकि वो जाना नहीं चाह रही थी। इतनी बड़ी खुशी भी तो आज ही के दिन नसीब हुई थी। अम्मा, मैं ठीक हूँ, अपना ख्याल रख लूंगी। एक दिन की तो बात है। फिर अम्मा हाजरा भी हैं मेरे साथ। आप आराम से चली जाएं। रात तक अज़ाम भी आ जाएंगे। फिर मैं अकेली कहाँ। बिल आखिर उसने अम्मा जेजल को कायल कर लिया था, पर साथ ही एक बार फिर से उसने अज़ाम को यह सब बताने से रोका था। आज तुम दोनों के लिए बहुत खुशी का दिन है। तन्हाई में तुम दोनों मिल बैठकर अपने सारे गिले शिकवे दूर कर देना पुत्र। जाने से पहले अम्मा जेजल ने आहिस्ता से कहा तो उसने अपना सर हिलाकर तायीद की। थोड़ी ही देर में अम्मा जेजल दानिया के हमरा रवाना हो गई थी। वो घर में दाखिल हुआ तो रात गहरी हो चुकी थी। वो अपनी अजरक उतार कर वहीं लाउंज में रखे सोफे पर बैठ गया। उफ, कितना सन्नाटा है हवेली में। उसने इर्द गिर्द फैले सन्नाटे को देखते हुए सोचा। तभी उसका सेल बीप करने लगा। जी वकील साहब, अच्छा चलिए ठीक है, आप जल्दी से सारी कार्रवाई मुकम्मल कर लें, मेरे पास वक्त नहीं। जल्द अज जल्द कागजात बनवा कर आप मेरे घर भिजवा दें। मुखालिफ की बात सुनकर उसने जवाब काट दिया और कॉल कट कर दी। जवाब दिया और कॉल कट कर दी। इस बात से बेखबर के ऊपर सीढ़ियों पर खड़े नफूस ने इसकी बात सुन ली है। कागजात लफ्ज पर उसका जहन सुन हो चुका था। वो अपने वजूद को घसीटते हुए रूम में आई और खिड़की की जानिब चली आई। अपने आंसुओं के घूंट पीने और इन्हें बहने से रोकने की नाकाम कोशिश करने लगी, मगर लाख कोशिश के बावजूद वो खुद को ना रोक पाई। अगले पल वो ज़ारों की तार रोने लगी थी। कब से रोके हुए आंसू अब बहने लगे थे। अम्मा हाजरा को खाने से मना करके वो ऊपर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। जब भी उसे अपने रूम से किसी नस्वानी सिसकियों की आवाज सुनाई दी, वो चौंका। इसके रूम में कौन हो सकता था। ज़ूफ़ी यहाँ थी नहीं। दानिया भी अम्मा जेजल के साथ गई थी। किसी नौकर का भी इसके रूम में आने से वास्ता ना था। तो फिर वो संभलता हुआ आगे बढ़ा और अपने रूम का दरवाजा खोला। अगले ही पल उसे हैरान कुन झटका लगा। पूरा कमरा रोशन था, मगर मोमबत्तियों की धीमी धीमी रोशनी से। दरवाजे से लेकर बेड तक आने वाली रोशनी पर कालीन हटाकर फूलों की सजी हुई रोश बनाई गई थी। बेड पर नफासे से बिछी चादर, जिसे फूलों की पत्तियों से सजाया गया था,
साइड टेबल, ड्रेसिंग टेबल पर जगह जगह खूबसूरत सी खुशबू बिखेरती कैंडल्स रोशन थी। पूरा कमरा महक रहा था और एक रोमांटिक सा तासुर दे रहा था। सब कुछ खूबसूरत और परफेक्ट था, सिवाय उस एक के जिसके रोने की आवाज इस मदहोश माहौल में मिसफिट थी। वो फौरन उसकी जानिब बढ़ा, जिसकी दरवाजे की सिमत पुश थी। क्या हुआ तुम्हें? तुम यूं रो? उसका जुमला अभी मुकम्मल भी नहीं हुआ था जब वो यकदम उसके गले से आ लगी। ये पहला मौका था जब ज़ूफ़शा ने पहल की थी, वो भी यूं। वो जब रूम में दाखिल हुआ, तब्दीली तभी महसूस हुई थी, मगर उसके गले लगते ही उसे और भी बहुत कुछ महसूस हुआ था। आम दिनों से हटकर उसने नाइट गाउन पहन रखा था, उस पर उसका नया हेयर स्टाइल, उस पर 16 सिंगार, चेहरे पर झूलती कुछ आवारा लटें और रोई रोई सी सूरत आफत ढा रही थी। ज़ूफ़ी, क्या हुआ है तुम्हें? क्यों रो रही हो? वो उसके गले लगकर अभी तक रोए जा रही थी। प्लीज मुझे मत छोड़ें, मुझे घर से मत निकालें, मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती। आप जो भी कहेंगे मैं मानूंगी। आप मुझे वो कागजात ना दें, मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। हिचकियों के बीच ज़ूफ़शा के बेरब से जुमले उसे बहुत कुछ समझा गए थे। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट दड़ आई। वो बाहों में थामे उसे बेड तक लाया और पानी से भरा गिलास उसके लबों से लगाया और खुद घुटनों के बल उसके करीब बैठ गया। अब बताओ, क्या बात है? पानी पीकर वो कदरे संभल चुकी थी। रोई रोई सी सुर्ख पड़ती आंखों में बहुत कुछ था। उलझन, शिकायत, परेशानी, उदासी, डर, मायूसी। आप मुझे क्यों छोड़ना चाहते हैं? मैं आपसे अज़ाम ने उसके होंठों पर उंगली रख दी। मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, बल्कि मैं तो खुद भी तुम्हारे बगैर रहना नहीं चाहता। बस एतराफ़ थोड़ी देर से कर रहा हूँ कि जाना, आई लव यू। दोनों हाथों में ज़ूफ़ी का हाथ थामे उसने झुके सर से एतराफ़ किया। तो फिर वो कागजात? ज़ूफ़शा ने हैरत से उसकी जानिब देखा। वो कागजात तो मेरी नई ज़मीन के हैं, जो हाल ही में मैंने खरीदी है, लेकिन मुझे क्या पता कि हमारी बेगम यहीं कहीं आसपास मौजूद होकर सुन रही हैं और कोई और मतलब अखज़ कर लेंगी। अज़ाम के चेहरे पर मुस्कुराहट रखसा थी। आम दिनों की निस्बत आज पहली बार उसने इतने फ्रेंडली लहजे में बात की थी। आज तुम नहीं, मैं बोलूंगा और तुम सुनोगी। ये तुम भी जानती हो, हमारी शादी तकदीर का अनोखा मिलन था, जिसके लिए हम दोनों ही तैयार ना थे। मैंने तो खैर किसी देहाती लड़की से शादी करनी थी। मैं चाहता तो अपनी पसंद से हैदराबाद में ही किसी लड़की से शादी कर लेता, मगर मैं अपने वादे का पक्का हूँ। मैंने ये जिम्मेदारी अम्मा पर ही छोड़ी थी और तकदीर ने नीलोफर के बिहाफ पर तुमसे मिलवाया। मेरी लाइफ में 2 औरतें आईं जो मेरी ज़ात से मुंसलिक थीं। पहली मेरी माँ और फिर नीलोफर। दोनों ने ही सेम हरकत करके मेरे एतमाद को रेजा रेजा कर दिया। तब भी मैं चाहकर भी तुम पर भरोसा नहीं कर पाया। हालांकि तुम्हारी बातें, तुम्हारी तहजीब, तुम्हारा रख रखाव बार बार मेरी आंखों के सामने आकर ये जाहिर करता कि तुम एतमाद के काबिल हो, मगर बस आंखों पर एक गुस्से और बदगुमानी की पट्टी सी बंध गई थी। और अब जब तुमसे दूर रहकर ये बदगुमानी की पट्टी मोहब्बतों के हाथों खुली है, तो अब सब मंजर साफ है। अब तुम चाहो भी तो भी मैं तुम्हें खुद से और अपनी जात से अलग नहीं कर सकता। अज़ाम ने उसके दोनों हाथों को अपने लबों से लगाते हुए अपने दिल का राज बयान किया। हाँ, अब चाह कर भी आप अलग करने का सोच ही नहीं सकते, क्योंकि ज़ूफ़ी कहते कहते रुक गई। यकदम उसे ढेरों ढेर शर्म ने आन घेरा, जबकि अज़ाम मबहूत सा उसे तके गया, जो शर्मो हया का पेकर बनी गुलनार हो रही थी। तभी ज़ूफ़ी ने साइड टेबल पर पड़ा बुके उसकी जानिब बढ़ाया, जिस पर एक कार्ड भी चिपका था। ये क्या है और किस लिए? उसने चौंकते हुए पूछा। खुद ही देख लीजिए मिस्टर अज़ाम शाह, वो कहकर अपनी उंगलियां मड़ोड़ने लगी। कार्ड पर कांग्रेस फादर नुमाया था। पहले पहल वो इस इबारत का मतलब नहीं समझ पाया, फिर ज़ूफ़शा की जानिब देखा, जो उसकी नजरें अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर खुद ब खुद शर्मा गई। रुखसारों पर अजब सी सुर्खी बिखरी हुई थी। बिलाशुबा आज वो बला की हसीन लग रही थी। उसका शर्मीला अंदाज उसे कुछ जता गया। तो क्या? मेरा मतलब तुम मुझे गिफ्ट? उफ, आई मीन हम मम्मी पापा बनने वाले हैं। मारे खुशी के वो पागल सा होने लगा और उससे पूछने लगा। ज़ूफ़ी ने होले से अपना सर हिलाया। ओ माय गॉड! उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। पेशानी पर, गालों पर, आंखों पर, हाथों पर इज़ाम के होंठों का लम्स फैलने लगा। आज मैं बता नहीं सकता कितना खुश हूँ। दुनिया की सबसे बड़ी खुशी साले 9 के तोहफे के तौर पर तुम मुझे देने जा रही हो। ज़ूफ़ी ने आज से पहले इतना खुश उसे कभी नहीं देखा था। इतनी वारफ्तगी की उम्मीद उसे कहाँ थी। अच्छा बताएं, आपको बेबी चाहिए या बाबा? यकदम ही ज़ूफ़ी ने पूछा। दोनों ही, उसने खट से जवाब दिया। दोनों? उसने नासमझी से उसकी जानिब देखा। हाँ हाँ, दोनों ही, मतलब ट्विंस। उफ, आप भी ना अज़ाम, वो शर्मा गई।
अच्छा सुनो, अब तो कोई शिकायत और नाराजगी नहीं ना? जूफी ने उसके सवाल के जवाब में दाएं बाएं नफी में गर्दन हिलाई। गुड, अब होनी भी नहीं चाहिए और ना मैं होने दूंगा। अजाम ने उसे अपनी बाहों में समेटकर उसकी पेशानी पर अपने लब रख दिए। आज से हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे, इस आने वाले नए साल की तरह। हमारा बच्चा भी हमारी मोहब्बतों और शफकतों के साए तले इस तरह परवान चढ़ेगा कि उसका हर रंग बहार के अवलीन दिनों में खिलते फूलों की तरह गहरा और शौक होगा। बारिश के कतरों की तरह उसका मन शफाफ आईना होगा जिसमें हमारा अक्स नुमाया होगा। अजाम ने इस पे प्यार की बारिश बरसा दी जिसमें इसका तन मन भीगने लगा। रात के इस आखिरी पहर जब नए साल का आगाज हो चुका था और खाल्के कायनात आसमान से जमीन तक नूर की लकीर खींच रहा था, खिड़की के रास्ते उसमें भीगती रात और ठंडी महकती हवाएं उनके आंगन में खिलने वाले नए फूल की नवीज सुना रही थी। ये स्टोरी कंप्लीट हो गई है। बहुत ही अच्छी स्टोरी थी। आप भी कमेंट्स में लाजमी बताइएगा आपको कैसी लगी, और काइंडली 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 सब्सक्राइब कर दें। जितने भी हमारे 50% लिसनर्स ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो सुनते हैं रेगुलरली, मुझे पता है, ये सारा डाटा हमारे पास है, मतलब शो होता है, तो वो सुनते हैं मगर वो सब्सक्राइब नहीं करते। ऐसा क्यों है? सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? क्या चला जाएगा? एक ज़रा सा प्रेस ही तो करना है। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दें, लाइक लाजमी किया करें और कमेंट भी किया करें और अपनी दुआओं में याद रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।